मैंने पापा से हमेशा सुना था 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, फिर योर स्टोरी पे आर्टिकल पढ़ने लग गए 200 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़। एंड मैंने कहा यार ये लोग भी तो यंग ही हैं, 28-29 साल, और इतना पैसा किसके पास होता है? पापा के सर्कल में तो कभी नहीं सुना किसी के पास 2, 5, 10, 20 करोड़ से ऊपर। तो ये 500,000 करोड़ की बातें क्यों कर रहे हैं? दैट इज हाउ माई जर्नी ऑफ लर्निंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टेड। हमने हॉस्टल वालों से टाई अप कर रखा था, जैसे जोमेटो रेस्टोरेंट से कमिशन लेते हैं, हम उनसे कमिशन लेते थे, ठीक है, वो दिला देते थे। हमने 400 लोगों को दिलाया एंड वी मेड 21 lakhs इन ब्रोकरेज। देयर आर मल्टीपल रीजंस। ओके, क्रिब बच्चे का पालना होता है, सेफ्टी, हाँ सिक्योरिटी। हाँ, एवरीबॉडी इन रियल एस्टेट इज क्रिबिंग। भाई ब्रोकर ने मेरा बेवकूफ बना दिया, लैंडलॉर्ड कह रहा है मेरे को रेंट नहीं आया, बच्चा कह रहा है मेरा पंखा ठीक नहीं हुआ, तो एवरीबॉडी इज क्रिबिंग। जो सक्सेस मेजर करने की मैट्रिक्स है, इट शुड नॉट बी मनी, इट शुड नॉट बी फेम, इट शुड नॉट बी हाउ मेनी पीपल यू नो, इट शुड बी हाउ हैप्पी यू आर। Hello, everyone, and welcome back to the Dharya Decodes podcast. In today's episode, we have somebody very interesting joining us. His name is Sunny Garg. He is the founder and CEO at Crib, which is India's #1 property management platform. And they're building a digital ecosystem of landlords, tenants, and entrepreneurs. He is somebody who also went on to found a company named Yourshell in the past, which is now acquired by Stanza Living. This year, he also received the Forbes 30 Under 30 Asia Award, and he's been a recipient of the same. Apart from that, Sunny is also a TEDx speaker. He's featured on multiple news and media channels, whether it's Your Story, ET, Times Now, etc. And one very interesting thing to actually know about his startup Crib is that it's not just backed by different venture capital funds, but also by marquee angel investors, including the founders of Cred, Paytm, Mamaearth, Droom, and a lot of other companies. In today's episode, we're not going to just talk about Sunny's journey of building Crib, but what's going to be super interesting is I'm going to decode his career trajectory, his early college days, how he decided on actually becoming an entrepreneur, and a lot more that you probably wouldn't have heard him speak at different podcasts because he has featured on a lot. But without any further ado, I'm going to welcome Sunny to the Dharya Decodes podcast. Hi, Sunny. Hello there. Thank you so much for having me here. इतना लंबा इंट्रोडक्शन और एकदम से एक टेक में कैसे दिया यार? मुझे पहले सबसे पहले ये बताओ। You were sitting so casually here and as you started Switch. एकदम से स्विच हो गया एंड so much energy। मतलब मुझे आज तक किसी के साथ पॉडकास्ट में ऐसा नहीं लगा यार इसकी एनर्जी इतनी हाई क्यों है। मतलब नॉर्मली लोग मुझे बोलते हैं ये बात। See, देखो, as a host, I feel you have to keep the energy high because my energy is going to reflect on the guest's energy and the entire conversation. But I am scared of your energy now. Why are you scared? यार देखो, मजा आना चाहिए ना। हाँ मतलब मजा आएगा। very 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 lovely energy यार। मतलब I've done multiple podcasts as we were talking and I didn't plan to do this podcast, but seeing your energy, I think this conversation is going to be fun. Yes. And looking forward to it. Perfect. Thank you so much for doing this, Sunny. And हमने बहुत back and forth किया था इसके लिए, but I'm glad we're doing this. You know, this is a career specific podcast, जैसे मैंने आपको बताया। तो जो भी audience आती है इधर, they are people who want to do something in life, they need guidance and they look up to people who come on the podcast क्योंकि शायद उनको जिंदगी में उनके जैसा कुछ करना है या खुद का कुछ करना है, whatever it is. And whenever I talk to different guests, whether it's VCs, founders, or you know, celebrities or influencers, one common thing that I notice is जब आप उनसे पूछते हो कि या तो एक तरीका है, you start with okay, now Sunny today is the founder and CEO of Crib, great, but I want to know when Sunny was probably a 7, 8, 10ish, 12-year-old child, what kind of a family did you come from? Because I want to understand कि मुझे ऐसा लगता है that the kind of family that you're brought up in, आपका environment कैसा होता है, उन लोगों का आपके thought process पे early on एक impression पड़ता है, and you do build a certain mindset basis what you see around you. Definitely. So I want to understand a little bit about the background and the kind of people you were surrounded by and what impact did it have on you in the early years when you were growing up? Yeah, you very rightly said कि what you are today is either your family background or your education or your work experience. True. And मुझे ऐसा लगता है major contribution family background का होता है because see like for example I'm 26 years old. Yeah. I was living with my parents till I was 18. तो मैंने जो भी कॉलेज में किया या जो भी मैंने उसके बाद किया वो सिर्फ 8 साल थे। Correct. बट जो फैमिली के साथ किया वो 18 साल किया। एंड आई ग्रू अप इन अ वेरी सिंपल बनिया बिजनेस फैमिली। मतलब आई टॉक बनिया बिजनेस फैमिली मतलब जहां पर पैसे की बात करते हुए ना डाइनिंग टेबल पे डरते नहीं थे। जैसे मैंने अपने दोस्तों से बात करी है हु आर नॉट बनियाज, उनमें जब भी तुम बचपन में पैसे की बात करो ना तो मम्मी पापा बोलते तुम इनके बारे में बात मत करो, तुम सिर्फ पढ़ाई के बारे में ये करो वो करो।
कहते ना, fortunately I have grown up in a family wherein my dad and I could have business conversations on a dining table even when I was 10. So yesterday only I was talking to a friend and I was telling him, he was asking me, when did you start working? And whenever I think of this thing, when did I start working, I always say कि कॉलेज में स्टार्ट किया था, ये बिजनेस किया था, वो किया था. कल थोड़ा डीप एंड बैठ के सोच रहे थे हम लोग, इस संडे की बात है ये, तो मैंने रियलाइज किया यार, द फर्स्ट टाइम आई डिड समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस और वो वाज व्हेन आई वाज इन क्लास 4th स्टैंडर्ड, 4th और 5th स्टैंडर्ड, एंड इट वाज नॉट माय बिजनेस. तो हम लोग को वाला सेटअप था टिपिकल, घर ऊपर है, नीचे पापा की दुकान है और आसपास गोडाउन्स हैं और वो सब है. Nice. तो माय डैड यूज्ड टू डू अ पेप्सी एंड कोक का डिस्ट्रीब्यूशन उस टाइम पे. अच्छा. तो एक मेरे पापा का इतना मोनोपोली था बिजनेस में कि पेप्सी और कोक दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास थी, दोनों अलग फर्म्स में. जो जनरली होता नहीं है, क्योंकि दोनों एक को नहीं देते. उसमें था और दोनों उन्हीं के पास थी, अलग अलग फर्म्स, एक मम्मी के नाम पे एक पापा के नाम पे, एंड पेप्सी कोक न्यू कि एक ही जगह से चल रहा है सब कुछ. तो वहां पर क्या होता था, जो कंच वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स आती है कांच वाली, तो उसमें क्या होता था कि जब भी आप किसी को देते हो नए बंदे को, तो यू गिव दैट पूरा रिफिल्ड एंड यू टेक एम्प्टी बैक. करेक्ट. तो आपने जैसे किसी रिटेलर को 100 रुपए का पूरा क्रेट दिया, उसको क्रेट बोलते हैं, तो वो आपको खाली बॉटल दे देता था. लेकिन हमारे पास तो पेप्सी को दोनों था. तो क्या था मिक्स होके माल आ जाता था. पेप्सी का खाली क्रेट पेप्सी में वापस जाना है भरने के लिए, तो उसमें कोक की बॉटल्स नहीं होनी चाहिए. तो हमारे गोडाउन में एक एक्टिविटी होती थी जिसमें सेग्रीगेट करते थे. तो पेप्सी की बॉटल्स अलग, कोक की अलग, थम्स अप की अलग, लिम्का की अलग. तो व्हेन आई वाज इन 4th 5th I went to a godown. I kept going to the godown since my childhood, because imagine growing up a child जिसके गोडाउन में पेप्सी, कुरकुरे was same brand पेप्सी का. right. ऐसा मिलता था. मैं गोडाउन में पहुंच जाता था, एक दो उठा लाया, रख लिया, वो सब कर लिया. जब फिर मैं देखता था सब लोग बैठ के सेग्रीगेट कर रहे हैं, ये क्या इंटरेस्टिंग काम हो रहा है यार, मुझे भी करके देखना है. तो that was the first thing related to business I did in my life, that segregating those, and I started enjoying it. कहना कब 2 4 5 10 दिन गोडाउन में काम करके आई वेंट टू सैट विद माय डैड की दुकान पे भी देखना है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे. एंड मेरे पापा का क्या था कि whenever I used to go to him and say कि मुझे 5 रुपए दे दो या मुझे 10 रुपए दे दो, एंड उस टाइम पे है ना वैल्यू थी ऑब्वियसली. 5 रुपए की बहुत बढ़िया. आज तो कोई वैल्यू नहीं है. 5 रुपए वाज, जैसे आज मुझे अगर 500 मिलेंगे तो मैं उतना खुश नहीं हुआ जितना उस टाइम पे अगर 5 मिल जाते तो मैं खुश हो जाता था कि और 5 रुपए मिले आज. एंड माय डैड यूज्ड टू से कि ये जो कैश का, बिकॉज दिस होलसेलर C&F बिजनेस इज इन कैश, कि जब ये कैश काउंट कर देगा तब मेरे से 5 रुपए ले लियो. अच्छा. एंड दैट इज हाउ आई. तब आपकी एज कितनी थी अप्रोक्सीमेटली? 6th स्टैंडर्ड. माय गॉड. ओके. तो 10-12 इयर्स मतलब 10-12 इयर्स. तो आई स्टार्टेड काउंटिंग कैश विद माय डैड, एंड टचवुड उस टाइम में हमारा बिजनेस अच्छा चलता था, कैश काफी था और कैश तो कैश काउंट करना बहुत जल्दी सीख गया. एंड यू डोंट रियलाइज व्हेन यू ट्रांजिशन फ्रॉम द गोडाउन टू द कैश to handling the whole business. Right. In the next 1 or 2 years, I was doing the whole accounting for him. Debit, credit. मैंने मतलब मेरे फ्रेंड्स ने 11th क्लास में सीखा था. पढ़ा मैंने जब पढ़ते अकाउंट्स में. मेरे पापा ने मुझे 7th 8th में सिखा दिया था कि डेबिट यहाँ आ जाएगा, क्रेडिट. और वो डेबिट क्रेडिट नहीं बोलते थे. उनका बहुत सिंपल सा था, यहाँ पे नगद की एंट्रीज आई जो आज बिकता है, यहाँ पे जो उधार वापस आई, यहाँ पे जो खर्चा है, तो ये टोटल कलेक्शन है, इसमें से माइनस कर दो, ये बचा हुआ आपका अमाउंट है आज का. एंड दिस आई लर्नड इन 7th स्टैंडर्ड. तो कहते ना, when you were talking about upbringing, yeah, this is what shaped my journey. I'm sure. कहते ना, LinkedIn आर्टिकल, LinkedIn पोस्ट, किसी और की जर्नी पढ़ना उतना मैटर नहीं करता ना, जो आपके. and those were my formating years of life. अब जिस बच्चे ने अपने पापा को 100 रुपए का क्रेट लेके 105 का बेचते देखा और पूरी गाड़ी जा रही है, तो उसमें कुछ 5,000 बच रहे हैं आपको एक दिन में. करेक्ट. एंड उस टाइम पे he is making 1.5-2 lakh rupees a month. Why will I go for a job जो 30-40 हजार रुपए कमाती है? मतलब वो तो आउट ऑफ पिक्चर हो गया ना, कि कुछ नहीं हुआ जिंदगी में, तो टैक्सी तो मैं भी बेच सकता हूँ ना. वो तो बचपन में सीख लिया था. That thing कहते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम, पहले पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, फिर फ्रूटी की हुई, फिर अब आटा मैदा घी तेल की है, जिसमें टॉप्स हैं, शक्ति भोग है, हल्दीराम है, ये सारे ब्रांड्स हैं. एंड ही रन्स अ फैंटास्टिक बिजनेस अराउंड इट. मतलब पूरा till date. C&F. I have asked him multiple times, why don't you chill, relax? It's time to change the front seat of the car. Let me drive and you chill. He's like, I don't want to chill. It's not about money for me. It's about how I want to spend my day. Right. सही बात है. No, but this is so interesting. मतलब आप बोल रहे हो that when you were 10 years old, you had learned how to manage accounts. You were counting cash in a दुकान. I was counting cash in a दुकान when I was 10-11. Accounts ये कह सकते हो 14-15. हाँ यार, but it's still pretty early. हाँ मतलब. So अब मुझे ये जानना है, चलो आपने ये तो बता दिया, so it's very clear that you had this
environment that you were brought up in, and dinner table conversations were also about money. There was no resistance कि यार पापा से पैसे की बात नहीं कर सकते, जो typically हर family में होता ही है. I think children are not involved in money related conversations because उनकी वो जगह समझी ही नहीं जाती समझी नहीं है. जाती उनको. यार पता है पंगा क्या होता है, जो मेरे पापा बहुत राइटली भी कहते थे, हाँ. कहते थे मैं तेरे को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व इसलिए नहीं करना चाहता, फिर तेरा पढ़ाई से मन उठ जाएगा. वो पर्सपेक्टिव भी सही है. पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं सही सही होता होता है. मतलब when you start realizing that money can be made like this, Yeah. then why do you want to become an engineer? सही बात है. एंड कहीं ना कहीं वो सही भी है कि नॉट इन्वॉल्विंग किड्स, बट अब मैं अपने पास पे रख के देखो तो कहीं ना कहीं नहीं. मतलब इट इज अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव थिंग फॉर पीपल. मतलब मेरे पापा के हिसाब से कुछ सही था कुछ गलत था, किसी और के हिसाब से पूरा ही गलत है, किसी और के हिसाब से पूरा ही सही है. Got it. लाइक आई हैव माय कजिन्स जिन्होंने पढ़ाई वढ़ाई की नहीं, वो उसी टाइम बिजनेस में घुसे और अब पूरा फुल फ्लेज बिजनेस संभाल रहे हैं एंड दे मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी. Nice. ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमा रहे. जितने भी ट्रेडिशनल Businesses यार. ट्रेडिशनल बिजनेस, ये जो स्टार्टअप में आके हम 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की बातें कर रहे हैं, I know. किसी को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, किसी को कुछ नहीं बच रहा, सब सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं. True. जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, They are making the real चांदनी money. चौक चावड़ी कहते हैं, जो सेलर है मीशो पे वो पैसे कमा रहा है, मीशो नहीं पैसे कमा रहा. हाँ, सही बात है. नहीं, एकदम सही बात है. एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग दैट मुझे इससे यही आपसे पूछना है अभी, टेकिंग दिस अहेड, व्हेन यू रियलाइज कि यार पैसे तो इससे बन ही जाते हैं और अच्छे खासे बन जाते हैं, एंड यू सेड यू रियलाइज वेरी अर्ली ऑन नौकरी तो मुझे नहीं करनी है, तो देन व्हाई इज इट दैट यू इवन डिसाइडेड टू गो अहेड एंड प्रोबेबली डू एन इंजीनियरिंग डिग्री? नहीं, आई डिडंट डू एन इंजीनियरिंग डिग्री. यू डिडंट डू इट. आई डिडंट वांट टू स्टडी दैट मच, तो आई डिड अ बीकॉम ऑनर्स डिग्री. आपने बीकॉम ऑनर्स किया फ्रॉम रामजास. राम जैसा. पर मुझे एक बात बताओ, जब आप अपने आसपास बच्चों को, आपने चलो अपने फादर को देख लिया एंड यू इमीडिएटली अंडरस्टूड कि बिजनेस में बहुत पैसा है एंड इट डज वेल, बट किड्स अराउंड यू, फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स टिपिकल ट्रेडिशनल जॉब्स में भी तो होंगे, एमएनसीज में होंगे या सरकारी नौकरियां होंगी. नेवर डिड इट पास योर माइंड अ थॉट ऑल्सो कि यार ये भी किया जा सकता है एज अ बैकअप? यार द प्रॉब्लम वाज आई एंजॉयड व्हाट माय डैड वाज डूइंग एंड आई वाज डूइंग विद हिम. मतलब मुझे मजा आ रहा था. कहते ना मैनेजिंग 20 पीपल, मैनेजिंग सो मेनी कस्टमर्स, कोई बड़ी कंपनी का कोई बड़ा एग्जीक्यूटिव आके बैठा है, ही इज, एंड जब तुम 15 साल के बच्चे को दुकान पे बैठे हुए देखोगे, इवन इफ वी गो टू अ शॉप एंड सम 15-year-old kid is doing something good, and I used to count cash faster than the bank cashier. एक टाइम ऐसा भी था. Like I have handled so much cash कि मैंने को, मेरे पापा का कहते हैं प्राउड से बोलते थे कि बैंक में जाके कि तेरे कैश में से तेज गिन सकता है मेरा बेटा. And when other people come to your shop and they appreciate it, then as a kid you start liking it. Yeah, बट मेरे डैड का बहुत सिंपल था. उन्होंने बोला देख तेरे को बिजनेस करना है, तू कर लियो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं. कह रहा ये बिजनेस कहीं नहीं जा रहा. हाँ. आज मैं अगर XYZ अमाउंट कमाता हूँ तो कल मैं XYZ +1 ही कमा रहा हूँ, -1 नहीं कमा रहा हूँ. ओके, बिजनेस विल ग्रो ओनली. ग्रो. हाँ. You go get some education and then we will grow it together ना. Even if you want to get into business, कहते देख मेरे को पढ़ना था, he wanted to study, कहते मैं कभी नहीं पढ़ पाया, तू तो पढ़ ले. एंड वो कभी क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत. लाइक आई विल गिव यू अ फैक्ट अबाउट हिम. He has done his bachelor's and master's from Open. Okay. And he wanted to become a lawyer. Okay. He couldn't become a lawyer because family responsibilities, शादी हो गई जल्दी, बच्चे हो गए, ये सब हो गया. When I took admission in my bachelor's, he took admission in law. अच्छा. And he did a 5-year law degree, 5 or 4-year law degree. हाँ, 5 years. While in college. When I was in When college. you were in college. So he did it from some college जहाँ पे एग्जाम देने जाना था, कभी कभार क्लास में जाना था. And he had a friend circle जो कॉलेज जाते थे, एग्जाम देते थे, and he used to study more than I used to. Wow, yeah. Because BCom honors रामजस में तो कुछ पढ़ना नहीं, आप दो दिन पढ़ के भी जाओगे. So he has an activity wherein he used to go, he still goes at 6 AM for swimming and badminton and everything. तो वो पूरा उनका सर्कल है, वो सब करते हैं. पर वो उस टाइम पे जब वो पढ़ रहे थे, वो 5 बजे उठते थे, 1 घंटा पढ़ाई करते थे. एंड लिटरली वो जो 10 years के नोट्स हम पढ़ते हैं, जिससे वो 10 years आती पतली सी कुंजी सी टाइप, उससे पढ़ते थे. पर उनको लॉ में क्यों जाना था? When he already had a business, like उनकी ख्वाहिश थी करने की. उनको कुछ होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें होती हैं जो आपको हमेशा से करनी हो, एंड इट्स नॉट फॉर द मनी और फॉर द प्रोफेशन. Yeah. He just It's just for the love for it. He was just wanted to be called an advocate, कि मुझे एडवोकेट बनना है. So right now, even if you see his business card, it's Advocate Surinder Garg. It's not Surinder Garg just. And he did it for the shock of it or for the passion of it. Like when people say ना कि passion follow करो, ये करो, वो करो, I saw that in him. Yeah. कि भाई मतलब मैं कॉलेज यार उस एज पे करना 5 साल की डिग्री, वही अपने आप में बड़ी बात है. एंड रेगुलर उनकी बैक भी आई थी एक बार. एंड आई वाज लाइक मेरी तो नहीं है, आपकी ऐसे आ गई.
मुझे बचपन से एंड ही वाज वेरी वो विद टाइट विद मी कि पढ़ाई में इतने मार्क्स. इमेजिन डूइंग ऑल दिस एज अ किड एंड आई स्टिल स्कोर्ड 96% in class 12th. And he was not happy about it. Why? 96 तो He अच्छा was like, था. I wanted you to go to SRCC. अरे यार. Like, I have never talked about my dad on any podcast this much. Obviously. I always say it was my dream to get into SRCC. It was never my dream to get into SRCC. For me, college didn't matter. It was his dream His for dream. me to get into SRCC. And when I said I got 96 and I won't be able to make it to SRCC, he was unhappy. And he put in posters around the world when I was in 11th, 12th, कि Sunny will go to SRCC. That when I didn't, it felt really bad for him also and for me also. समझ रही Because I was a good kid in studies. आप तो बोल रहे हो आपको पढ़ाई पर करनी नहीं थी, पसंद नहीं थी, इतने अच्छे ग्रेड्स तो आ रहे हैं. 96 पढ़ना is pretty good. पढ़ना थोड़ी पड़ता है 12th में. पढ़ना वो तो है but ये see मुझे ऐसा लगता है if you have a little good IQ हाँ and you study Manageable. study for some and ठीक है ना. I was never into any extracurricular activities, never अच्छा. into sports. या तो दुकान पे बैठ लिया या फिर पढ़ लिया. मतलब स्कूल गया, स्कूल से आया, एक दो ट्यूशन अटेंड कर लिए, फिर पापा के साथ जाके बैठ गया, फिर आके घर पे थोड़ा पढ़ लिया, फिर वापस ऐसे डे खत्म हो गया. तो जो दुकान didn't substitute for the Studies, हाँ. दुकान substituted for sports. Got it. Like if you will play cricket with me, you will realize he doesn't play good cricket. The reason is not कि मैं खेल नहीं सकता. The reason That's because आपने उतना time दिया ही नहीं. मैं कभी खेला ही खेला ही नहीं. नहीं, जब हाँ. बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे मैं दुकान में बैठा था. Right. Got it. Very interesting. So सनी ने अल्टीमेटली फिर की बीकॉम ऑनर्स कौन? रामजास से. एंड आपके पापा ऑब्वियसली खुश नहीं थे इतने. आफ्टर पॉइंट ही आल्सो वाज लाइक देन तो फिर अब तो कुछ मेरा पता ही नहीं होगा. मतलब उनकी वजह से मैं पढ़ लिया. इससे मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे स्टार्टअप करना है. ये मुझे रामजास जाके रियलाइज हुआ था. Tell me a little bit about your experience of studying at Ramjas and how were those years like, college years? Yeah, see, I will tell you very honestly, the first 6 months were pathetic. Why? Because I didn't hear of that college. मुझे तो इंडिया में SRCC से छोड़ के कॉलेज ही नहीं पता था कोई. And when you start, Were you disappointed yourself? I was highly disappointed. Because imagine, आपने कॉलेज सोचा कि मैं SRCC जाऊँ. Right. फिर आपने करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख ली कि कॉलेज ऐसा होता है. And आप पहुंच जाओ DU के रामजस. Will you not be disappointed? I will be, definitely. 99.99% people who go to college are disappointed because of Karan Johar. I agree. उसने उसने इतनी फॉल्स वर्ल्ड बना रखी है ना. हाँ, मतलब कौन सा कॉलेज है ऐसा? कोई नहीं है भाई, मैंने तो नहीं देखा. हाँ, तो and the problem was when I went to Ramjas, all my classmates were also 96% वाले. And I came from a बनिया बिजनेस बैकग्राउंड. तो मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग थी, पर मेरी इंग्लिश कभी भी स्ट्रांग नहीं थी. और मेरे बैच में बाय चांस सारे डीपीएस आरकेपुरम के लोग आ गए, रामजस में भी. एंड हर सिटी का, हर स्टेट का टॉपर. तो मतलब मुझे रामजस जाके ऐसा लगा, आउट ऑफ द प्लेस फील हुआ. मैंने कहा आई डोंट बिलोंग हियर, स्पेसिफिकली इन माय क्लास. राइट. तो फिर ऐसा लगा यार अगर यहाँ ऐसा हुआ, अगर एसआरसी जाता तो वहां क्या होता. राइट, वो भी है. तो फॉर द फर्स्ट 6 months आई थॉट I don't want to do this. Let me do CA. Because business करना है तो CA कर लो. CA अच्छा. हाँ, CA कर लो और पापा के बिजनेस पे बैठ जाओ. सबसे easy बनिया ट्रिक True. कि आप CA कर लो, वो हो ही जाएगा आपका क्योंकि अकाउंट्स मैथ्स अच्छा है. पर when I imagined that life for me, कि कहते ना मैंने पढ़ाई की और फिर मेरे को जो चाहिए था वो नहीं मिला. So I kind of gave up on studies. कि मुझे नहीं पढ़ना यार. और 5 साल ऐसे एग्जाम के लिए जो लोगों का निकलता ही नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना. Right. और पूरे दिन रात सुबह 6 बजे उठ के कोचिंग जा रहे हो, फिर आर्टिकलशिप जा रहे हो. मैंने कहा ये नहीं करना. तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, 6 महीने और रामजस को देते हैं. अगर नहीं अच्छा हुआ तो फिर पेप्सी बेचेंगे. सही है. हाँ, मतलब कुछ ऐसा करेंगे, ये तो नहीं करेंगे. हाँ, ठीक तो व्हेन आई वेंट बैक टू कॉलेज, तो दैट सेकंड सेमेस्टर ऑफ द कॉलेज इज द वो वाला फेज. इवेंट्स हो रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, बिजनेस फेस्ट हो रहे हैं. एंड आई रैंडमली देयर वाज अ फेस्ट इन अ गर्ल्स कॉलेज, जीएमसी. जीसस एंड मेरी. हाँ, जीसस एंड मेरी. मेरा फेस्ट में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. मेरा गर्ल्स कॉलेज में एंट्री मिलेगी इस बात में बहुत इंटरेस्ट था. तो हम लोग ने 5-7 लोग क्लास के गैंग अप हुए और हम लोग चले गए जीसस एंड मेरी कॉलेज. अच्छा. लड़कियां देखने. अब वो तो समझ आ ही रहा. अब गए हो तो तुम्हें इवेंट भी अटेंड करना पड़ेगा. तो वहां कोई बिजनेस तंबोला चल रहा था, कुछ बिजनेस तंबोला, कोई बिजनेस इवेंट चल रहा था. मैं जाके ऑडियंस में बैठ गया और मैंने ठीक है, मैंने कहा मैं भी खेल लेता हूँ यार, ये जो खिला रहे हैं. एंड आई गॉट सेकंड. अच्छा, you came second in that competition. हाँ, and there were 700-800 people. Oh,
बट इट वाज अबाउट बिजनेस, उसमें ना इंग्लिश लगी ना कुछ और लगा। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है। एंड दे गिव मी सम 3000 रुपीस कैश प्राइज, a certificate and a photograph with all the team members, ये वो, and I got that। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जो रामजस का था, वो देखो मैच जीता है, तुम नहीं जीते मैं जीता टाइप्स। मैं कहा ये तो इंटरेस्टिंग चीज है। तो नेक्स्ट टाइम आई वेंट टू अ कॉलेज इवेंट, I didn't go to see girls, I went to participate in the event. बिजनेस इवेंट। एंड इससे पहले कॉलेज में सोसाइटीज में सारे इंटरव्यूज हो चुके थे, सब मुझे रिजेक्ट कर चुके थे अच्छा कि भाई ये क्या करेगा, मतलब आई वाज नॉट वेरी गुड विद स्पीकिंग इंग्लिश। ये कि भाई मेरे से तो नहीं बोले ये। और आर्ट्स म्यूजिक स्पोर्ट्स ये सब कभी किया नहीं था। और ठीक है, मैंने कहा ये नहीं हुआ। बैक टू बैक इन 2-3 months आई वन अराउंड 20 इवेंट्स। 20 इवेंट्स? तो उस ईयर के डीयू में जितने इवेंट्स थे, आई पार्टिसिपेट, किसी में सेकंड आया, किसी में थर्ड आया, किसी में फर्स्ट आया, किसी में These were all business events? ऑल बिजनेस इवेंट्स, स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज, ये वो, जिसमें बेसिक आईक्यू लगना था। समझ गए, एप्टीट्यूड आपका बेसिक। हाँ, बेसिक एप्टीट्यूड लगना था, बेसिक बिजनेस सेंस लगनी थी कि इससे लेके इसको बेच दिया, इतना प्रॉफिट हो गया, ये सब करना था। राइट। तो मेरी कॉलेज में किसी को पता चल गया कि और देयर इज समबडी नेम सनी इन आवर कॉलेज हु इज वेरी गुड एट बिजनेस इवेंट्स, व्हाई डोंट वी आस्क हिम टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इवेंट इन आवर कॉलेज in our college। मैंने कहा आई एम तो नॉट even a part of your society, कहते we will take you in our society। मैंने कहा but I will not work as a volunteer। First year works as a volunteer। मैंने कहा my only condition is I will work as a business head। I will not work जो second या third जो सेकंड और थर्ड में मिलते हैं, बोर्ड मुझे तो मैं करूंगा, और जो भी सारे लोग उस इवेंट में होंगे वो वॉलंटियर होंगे। इसे कहते हैं बिजनेसमैन। हाँ, मैं so I hijacked that society, became the general secretary of that society next year, ran it successfully। and यही सब कौन सी सोसाइटी थी? ईसेल था? Commerce society। ईसेल तो I founded later। Oh। When I got board of commerce society, I like our college doesn't have an entrepreneurship cell, and I want on my resume that I am the founder of an entrepreneurship cell। So that is how I founded an entrepreneurship cell। But यही सब करते करते ना कॉलेज में मन लग गया। मैं ये क्या बता रहा था कि कॉलेज में मन लग गया, एक डायरेक्शन। फिर आप रह लिए, वरना तो you were obviously planning to निकल जाओ मतलब। Nice। So you won 20 business events, after which you became the head general secretary of the commerce society also। general secretary। उसके बाद आपने फिर entrepreneurship cell establish किया from scratch अपने कॉलेज में। Founding president। Oh wow, very nice। Then there was no looking back in my career। Right। Touch wood, till date। Yes, great। तो मुझे थोड़ा ये बताओ कि जब आपने मतलब कॉलेज डेज में, मुझे ये जानना है दैट वर यू वेरी क्लियर कि अपना ही कुछ बिजनेस, लाइक तब तक इतनी क्लैरिटी आ गई थी कि मतलब पापा का जो बिजनेस है वो तो है ही, पर वो नहीं करना है, अपना खुद का कुछ अलग से करेंगे? यार पंगा क्या था, जब हम लोग कॉलेज में थे तो ये टीवीएफ पिक्चर्स निकला, ये नया योर स्टोरी पता चला, एंड आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी। मतलब मेरी पुरानी कंपनी वाज कॉल्ड योर शेल। मतलब the thing was I was searching a name for a home company। और प्ले स्टोर पे शेल सर्च कर, वो होम सर्च किया तो शेल नाम से कंपनी आ रही थी, और योर स्टोरी का आर्टिकल आया, दैट इज हाउ आई गॉट योर शेल। अच्छा, वो दैट इज हाउ आई केम अप विद द नेम योर शेल। तो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मैंने पापा से हमेशा सुना था 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। फिर योर स्टोरी पे आर्टिकल पढ़ने लग गए 200 करोड़ 500 करोड़ 700 करोड़। एंड मैंने कहा यार ये लोग भी तो यंग ही हैं, 28-29 साल, और इतना पैसा किसके पास होता है? पापा के सर्कल में तो कभी नहीं सुना किसी के पास 2 5 10 20 करोड़ से ऊपर। ये 500 1000 करोड़ की बातें क्यों कर रहे हैं? दैट इज हाउ माय जर्नी ऑफ लर्निंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टेड। कि यार ये है क्या स्टार्टअप, राइट? कि भाई मतलब ऐसा क्या करना पड़ेगा जो कल को मेरे बच्चे भी बोलेंगे हमारे पापा के पास 1000 करोड़ है। Right। You start learning about VC, you start, like a lot of people ask me that you come from DU, you have not seen anybody doing a startup, how did you learn? Correct। I read it online। Read what? Articles, all of this। How VC works, how startups work, how are equities, what is pre-money valuation, what is post-money और कभी आपको अगर confusion होती थी या terms बहुत fancy, because all of this is not easy to understand if you don't know, if you don't come from that background। ask for help। So you would ask for किसी को तो पता होगा ना, मुझे नहीं समझ में आएगी, किसी इंग्लिश बोलने वाले को समझ में आ जाएगा, किसी मैथ्स कोई mentors थे आपके कॉलेज में? नहीं यार, कॉलेज वाले कोई भी नहीं। अब मतलब क्रिप के टाइम पे तो हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ मेंटर्स। कॉलेज के टाइम पे कोई था? एनीबडी हु वुड गाइड? आसपास कोई, द थिंग इज उस टाइम पे कोई डीयू में था ही नहीं ना टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम। लाइक अभी यू वर आस्किंग मी व्हाई डू ऑल ऑफ यू ऐसा आपको सनी भैया क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ वी वर काइंड ऑफ द फर्स्ट पीपल टू गो आउट एंड स्टार्ट अप।
हमसे पहले क्या कर रहे थे लोग, एमबीए कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो So the culture didn't exist The only. culture didn't exist When you started. When we started, a lot of people got confidence कि यार ये हो सकता है. And when we sold the company, तब लोगों we made money. Right. तब लोगों को ये realize हो गया कि पैसा तो बन सकता है. And all these people started coming to me for discussing different ideas, ये वो. And जब ये लोग मेरे साथ 2-3 साल छोटे हैं तो सबने एक दूसरे को भैया बोलते हुए सुना था कि ये भी भैया बोल रहा है तो मेरे को भी भैया बोल रहा है, वरना सनी बुरा मान जाएगा. जबकि मैं कभी बुरा नहीं मानता. तो that is how it all started. तो उस टाइम पे कोई mentorship culture था ही नहीं पूरे DU में. राइट, गॉट इट, वेरी इंटरेस्टिंग. पर आपने ये मेरे को बताओ कि जब आपने मतलब ये सब फॉर्मलाइज किया एंड देन यू ऑब्वियसली स्टार्टेड द ई सेल आल्सो, देन अ लॉट ऑफ पीपल ऑब्वियसली वुड हैव आल्सो रियलाइज्ड दैट एंटरप्रेन्योरशिप की भी एक दुनिया है देयर, एटलीस्ट इन योर कॉलेज योर जूनियर्स. जब योरसेल का आपने आइडिया ये जो बताया, आई वांट टू अंडरस्टैंड. मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था, आप बोल रहे थे कि जैसे ही मैं हॉस्टल वर्ड यूज करता हूँ या हॉस्टल के बारे में बात करता हूँ, यू विल सी अ स्पार्क इन मी बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, राइट? व्हाई आर यू पैशनेट अबाउट हॉस्टल्स? पैसा बनाया यार उससे, और पता है वो और बात सही है. बनाने से पहले यार, बनाने के बाद ठीक है, बनाने से पहले हॉस्टल, क्योंकि यार आप करने को तो कुछ भी कर सकते थे. उस टाइम आई स्टार्टेड, तो माय जर्नी इज वेरी सिंपल. आई स्टार्टेड फाइंडिंग अ प्रॉब्लम टू सॉल्व कि क्या प्रॉब्लम है आसपास. एंड जब आप किसी कॉलेज में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के लिए हॉस्टल होती है. तो वो प्रॉब्लम पिक करेंगे, उसके अलग अलग सॉल्यूशंस ट्राई करें, जो आज तक हम कर रहे हैं. पहले आई स्टार्टेड हेल ड्यू, जहां पे हम ब्रोकरेज कर रहे थे, लोगों को हॉस्टल दिला रहे थे. फिर वी स्टार्टेड आवर ओन हॉस्टल्स, देन वी सोल्ड इट, नाउ वी मेक टेक्नोलॉजी फॉर हॉस्टल्स. राइट. तो आज a spark comes to me when I talk about hostels. It was not there before. But I spent my formatting years of career talking about hostels all the time. कहते ना, आज वो वाली बात है कि हाँ यार हॉस्टल, कहते ना, I want hostels, PGs, flats to be known by Crib और Sunny और शेफाली और whatever. But initially तो मैंने उस, कहते ना, मैं उससे शुरू करा ना. Right. और फिर इतना करते गए जब आप दिन रात सोचे एक चीज रहे हो, तो why will you not fall in love with that? आप रामजास नहीं जाती, पर फिर वो हॉस्टल वाला एंगल नहीं आता ना. कुछ नहीं आता, मतलब ये भी सोचो. I want to tell this loudly to people that whatever happens for a reason. मतलब अगर मैं SRCC जाता, तो my life would have been different. I would have gone into maybe a अलग ही, MBA college, हाँ, maybe a good MNC, हाँ, वो सब कोई जॉब. तो वो लाइफ में कहते ना, somebody has written a book. You are just playing a character role. तुम्हें एक स्क्रिप्ट आती है दिमाग में, एक दिन पहले तुम उसे फॉलो करते हो, वो करते हो. तुम कुछ नहीं लिख रहे, राइट, किसी ने लिखा हुआ है. अगर तुमने सोचा तुम्हें कुछ और करना है और कुछ और हो गया, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट बुक. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. मतलब there is no point cribbing about it. There's no point cribbing about it, guys. Okay. Very interesting. So, Sunny, you told us a little bit about obviously how you going to Ramjas and everything that happened for a reason. क्योंकि I think it is because of that कि आपको हॉस्टल में किसी एक बच्चे को जो दिक्कतें आती है when you are away from home, what doesn't work out, वो सब समझ में आया. You identified those paths or those gaps. But I want to understand that how did you get to know कि उस चीज का इतना पोटेंशियल है कि उसको स्केल करके एक बिजनेस बन सकता है उससे. वो इंट्रिकेसी, वो डिटेल्स कैसे आपको पता चली कि यार इस पे एक पूरा बिजनेस बना सकते हैं? तो योर शेल का जो कॉन्सेप्ट था, आई अंडरस्टैंड दैट केम फ्रॉम लिविंग इन हॉस्टल, सीइंग योर फ्रेंड्स एंड योर सेल्फ फेसिंग सम प्रॉब्लम्स. बट हाउ आर यू सर्टेन दैट दिस कुड बी अ बिग बिजनेस टू बिल्ड? I was not. You were not. And I didn't start it to become a 500 crore company. If you are starting a company for it to become a 500 crore company, it will not become. सही बात है. मतलब मैंने तो ये स्टार्ट किया था, we started before yours, we started Hail DU. Okay. And the purpose was simple. आपको हॉस्टल ढूंढने में दिक्कत आ रही है, और हम जोमेटो की तरह आपको हॉस्टल दिला देंगे, जैसे जोमेटो रेस्टोरेंट दिलाता है. टेक वैक हमें आती नहीं थी, ठीक है, बिकॉज कॉमर्स बैकग्राउंड. तो ऑफलाइन इंटर्न्स थे जो इधर उधर जाके लोगों की मदद करते थे. तो कोई उनसे पूछते थे हॉस्टल कहाँ लेना है. हमने हॉस्टल वालों से टाई अप कर रखा था, जैसे जोमेटो रेस्टोरेंट से कमीशन लेते हैं, हम उनसे कमीशन लेते थे, ठीक है, वो दिला देते थे. हमने 400 लोगों को दिलाया, एंड वी मेड 21 lakhs in brokerage. Wow. In 25 days. That's a very nice amount. And we made around 15 lakhs profit. Okay. That is how we started. And time to 14-15 lakh. आपने अकेले स्टार्ट किया था तब? We were 4-5 friends. Okay. Okay. Then we started getting a lot of phone calls from people कि ये हॉस्टल जो दिलाया ये अच्छा नहीं है. तो मैंने कहा यार, मैंने तो जब पूछा था सब सही था, रिव्यू भी ठीक थे. मैंने ओनर को कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया. दूसरे को किया, उसने भी फोन नहीं उठाया. तो we realized that the problem is not
finding a good space. Okay. Problem is existence of good space. है ही नहीं. है ही नहीं अच्छे. कहते ना जोमेटो तब खोलोगे जब इंडिया में रेस्टोरेंट्स होंगे. होंगे हाँ. जब रेस्टोरेंट्स ही नहीं है जोमेटो का क्या करोगे? Correct. तो उस टाइम पे co-living boom didn't happen in India. All these Zolos, Stanzas, they were not there. Yeah. That is how we started Yorshell. And we didn't start it to become a very big company. We started कि यार हम अगर 500 बेड कर लेंगे तो हमारा 8-7-8 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू होगा. हम 1-2 करोड़ रुपए कमाएंगे, 20-25 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे. We were 19 year old. उस हिसाब से तो यार वो भी बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. Yeah. And then we'll scale it to India, we'll scale it to the world. सोच तो सब सकते हो ना. Right. सोच में तो मैं ऑलरेडी बिलियनर हूँ. और उस टाइम पे तो वर्ल्ड का सबसे पैसे वाला आदमी था. कहते ना एज यू ग्रो इन लाइफ विद मैच्योरिटी आपकी सोच छोटी हो जाती है. सही बात. फॉर अ यंग 19-year-old, yeah. जस्ट मेड 15 lakhs. Yeah. वो तो ये सोच रहा था कि जब वो वर्ल्ड का सबसे पैसे वाला आदमी बनेगा तो क्या करेगा. क्या करेगा? उसको थोड़ी पता था कि मार्केट साइजिंग कैसे करते हैं, टैम कैसे करते हैं, Right. बिजनेस मॉडलिंग क्या करते हैं. उसको तो ये पता था ये बिल्डिंग लो, इतने की लो, इसमें खाना लगाओ, इसमें स्टाफ लगाओ और इसको बेच दो. हाँ. मेरे लिए तो बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल था ना. हाँ. एंड वर्ल्ड में सब बच्चे पढ़ते हैं, सब बच्चे जॉब करते हैं, सबको पीजी चाहिए. मेरे लिए तो टाइम भी इनफिनाइट था. Right. फंडरेज इतना किसी ने सुना नहीं था, कुछ पता नहीं था. इधर उधर लोगों से ब्याज पे पैसा ले लिया, जैसे पापा को बिजनेस करते हुए देखा था और वैसे ही पूरा बिजनेस बना दिया. एक दिन वो कंपनी बिक भी गई और पैसा भी कमा लिया. Right. फिर उसके बाद बैठ के सीखा कि ये सब कहते ना बिजनेस टू स्टार्टअप तो आ गया था पहले कि हाँ, करना है. करना है. पर कैसे करना है ये कंपनी बेचने का सीखा. तो व्हेन आई पीपल से दैट यू आर अ सेकंड टाइम फाउंडर और यू आर अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, आई सेड ब्रो आई एम द फर्स्ट टाइम फाउंडर. I've been a businessman, Yeah. but I'm a founder. Founder first. Yeah. I was gonna say that. कहते ना कैपिटल कैसे रेस करेंगे, पढ़े लिखे लोगों की टीम कैसे चलाएंगे. वहां पर कोई पढ़े लिखे लोगों की टीम नहीं थी. ओनली इंटर्न्स एंड ओनली मेड्स, कुक्स और ये सब लोग. दैट वाज अ ट्रेडिशनल बिजनेस. एंड जब लोग कहते हैं कि बिजनेस के लिए प्रॉब्लम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, भाई कुछ नहीं होना चाहिए. एक छोटी सी दिक्कत जो तुम्हें आ रही है तुम उसे वो सॉल्व करो ना. टैम वैम की चीज बाद में देखेंगे ना यार. ये सारी प्रॉब्लम्स बाद में. अगर तुम्हें लग रहा है कोई प्रॉब्लम तुम्हें और तुम्हारे 4 दोस्तों को है तो वो प्रॉब्लम होगी. लोगों को टेस्ट कर लो. अगर इतने भी लोगों का है कि तुम 2-4 करोड़ रुपए साल के बना सकते हो तो इट इज गुड इनफ. Correct. द फर्स्ट बिजनेस यू डू doesn't have to be a multi-billion-dollar business. Yeah. Nobody has made a billion-dollar business in the first go. Yeah. unless his name is Anant Mani. तो वो कहते ना it's very very rare. Rare, yeah. Very There's rare. something कहते ना वो तुम्हारे को पहले दिन ही कॉल आ जाती है कि भाई मैं बनूंगा बिलियनर. अगर तुम्हारा फर्स्ट बिजनेस ही बनेगा ना तो तुम्हें पता है हाँ. तुम्हारे आसपास कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें पता चल रहा है. हाँ. और अगर नहीं पता चल रही ना, वो कॉलिंग नहीं आ रही, जो मिल रहा है वो तो शुरू करो. लाइक आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हु कीप थिंकिंग आई विल डू दिस. मतलब मैंने एक पोस्ट डाली थी लिंक्डइन पे कि XYZ person would have 250K followers by now. This person would have acted in 2 web series by now. This person would have be doing 25 lakhs a month in revenue. But have they done that? Yeah. No. Why? Because ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा. Correct. तो अगर तुम कभी शुरू ही नहीं करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे. सही बात है. घर से निकलोगे तो रास्ता तो मिल ही जाएगा ना यार. 2-4 जगह गलत जगह चले जाओगे, पहुंच तो जाओगे ना डेस्टिनेशन में. इतने वो तो नहीं हो. और अगर हो तो क्यों ही करना है बिजनेस, फिर तो नौकरी कर लो भाई. नहीं सही बात है. पर आपने जब 3 साल, आई थिंक Yorshell almost 3 years, more than 3 years you built it. When was that point जब आपको लगा कि यार इसको बेचना चाहिए या बेच और selling the company is the right thing to do as a founder? जब तक मैं उस मीटिंग में जाके नहीं बैठा. You didn't think of it also. I went to that meeting for the fun of it. कि a big company who has raised $100 million just wants to sit down and have a sit down with me. The first interaction I went there, I was like, मैं तो जाके देखता हूँ इतने बड़े लोगों की कॉफी कैसी दिखती है, कैसी टेस्ट करती है. क्या मैं गरीब आदमी हूँ? मेरी कॉफी से अलग है उनकी कॉफी, उनके ऑफिस में जो मिलती है. एंड मैं तो गया था, मैं तो बुराई किया, तुम्हारी प्रॉपर्टी में ये अच्छा नहीं, तुम्हारा खाना अच्छा नहीं, तुम्हारे बच्चे रोते रहते हैं, मेरे पास आते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं. तुम्हारी जो कंपनी बेकार चल रही है, क्यों चला रहे हो इस कंपनी को? कुछ अच्छा कर लो. I didn't think they will buy it. यार imagine a 21-year-old kid who's running a business with debt. कोई उससे आके बोलेगा मैं तुझे XYZ करोड़ों रुपए दूंगा तेरी कंपनी खरीदने. Will you believe it? नहीं भाई, it's very difficult to even digest it. I didn't believe it. I was like ठीक है यार, कोई आके मुझे सपने दिखा रहा है, मैं देख लेता हूँ, पूरे होंगे ठीक है, नहीं होंगे तो मेरा तो धंधा चल ही रहा है.
तो वो बहुत वो था यार, सोचा नहीं था बेचने का। उन्होंने एक अमाउंट बोला जिसमें मेरे सारे को फाउंडर्स मान गए। फिर मैंने कहा यार एक बार दिमाग में इन्होंने बेच दी ना कंपनी, हमें चला तो नहीं पाएंगे। वो विजन डिफरेंस दिख जाता है ना। तो मैं तो 4 लोग एक रूम में बैठे हैं, 2 ने बोला हमें नहीं बेचनी, 2 ने बोला हमें बेचनी है भाई, हमें पैसा चाहिए। हाँ उन 2 लोगों के साथ तो आप काम नहीं कर सकते ना आप, करेक्ट। क्योंकि आपको पता चल गया कि उन्होंने एक बेंचमार्किंग की हुई है। हाँ मेरा वो प्राइस नहीं है, तुम्हारा वो प्राइस है। आज का तुम और मैं तो साथ में काम नहीं करेंगे। जो 2 लोग नहीं बिके थे वो आज भी साथ काम करते हैं। आशिफ अली, कि हमारे सपने तो बड़े थे ना, उस पैसे से हमारे सपने तो पूरे नहीं हुए। उस पैसे से अगर मैं लैम्बोर्गिनी नहीं निकाल पाया तो क्या हुआ? फिर तो पैसा ही है ना। फिर तो या तो आप इतना पैसा कमा लो कि आप अय्याशी कर लो। हाँ, वो तो फिर अलग। अगर आप अय्याशी नहीं कर पा रहे, वो वाली जो बदमाश कंपनी को गाना आता है कि भाई जब वो पैसा कमा के करते हैं तो फिर क्या ही फायदा है पैसे का? 1-2 करोड़ रुपए का क्या करोगे आप? 2-4 करोड़ रुपए का कुछ नहीं। तो सही बात है। तो we sold the company because we thought now it's time to separate from them and start a better Something organization together. And कॉलेज में दोस्ती में कंपनी शुरू कर ले तो बाद में समझ में आता है कि किसकी जरूरत है किसकी नहीं है। यू शुड होल्ड हाउ मच इक्विटी, ये सब यू गेट मैच्योर ना। या तब इतनी अंडरस्टैंडिंग भी तो नहीं होती है चीजों की। 4 लोग एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, उन्होंने मिलकर कंपनी खोल ली। कंपनी भी क्या कंपनी थी यार। सही कंपनी भी क्या कंपनी थी, कंपनी धीरे धीरे बनी और इट वाज अ बिजनेस। मतलब मेरा मानना ये है हर आदमी यार तुम ऑनलाइन कुछ भी बेचने लग जाओ, तुम अपने आप को स्टार्टअप बोलते हो। हाँ मतलब मैंने लोगों को देखा मोमोज की दुकान खोलेगा, बोलेंगे मैं स्टार्टअप। दैट इज नॉट अ स्टार्टअप, दैट इज अ बिजनेस। There's a difference. Startup is an early stage of an enterprise. Yeah. This definition was given to me by a unicorn founder. Okay. जो बोलता है startup is an early stage of an enterprise. If you don't think that it will become a multi-billion-dollar business in the future, it's not a startup. जितने मोमोज वाले हैं किसी का स्टार्टअप नहीं है। वाव मोमोज एक स्टार्टअप है। Wow मोमो स्टार्टअप। उसने डे 1 पे सोचा था मैं 500 स्टोर खोलूंगा। करेक्ट। वो the Vision of the vision and the operating way how you operate it. And the scale at which you operate it. कहते हैं ना स्केल से पहले भी विजन है ना। विजन, हाँ। मैं अगर आज एक मोमोज का रेडी खोल रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया का हर आदमी मेरे मोमोज खाएगा तो मैं एक स्टार्टअप हूँ। हाँ। पर मैं ये सोच रहा हूँ ये रेडी मुझे 5 लाख रुपए महीना कमा के दे सकती है तो मैं एक बिजनेस हूँ। करेक्ट। लोगों को ये डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। पर बहुत लोग बोलते हैं कि बिजनेस और स्टार्टअप सेम चीज है। तो उन्हें बोलना, उन्हें नहीं पता। हाँ, आई हैव हर्ड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट इज द सेम थिंग। यार आप मेरे से कोड की बात करोगे तो मैं भी बोलूंगा सब सेम है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना। If you are not educated enough to talk about it, and if you don't have knowledge, if you don't have knowledge about it, तो आप कुछ भी बोल लो ना। Right. सही बात है। ये डेफिनेशन मैंने तो दी नहीं जो मैं कहते बैठ के हीरो बन रहा हूँ यार ये डेफिनेशन सही है। Somebody else who has made $1 billion business उन्होंने बोले। Very interesting. So obviously you went on to build the company, take it to a great, I would say, annual revenue mark also, and फिर आपने उसको बेच दिया to Stanza Living. When you made this decision, your friends, people around you, and especially your family, what was their reaction? They didn't believe it. I called my mom and I said I will get XYZ crores for my company. उन्होंने उनका next question था दिन में क्या खाना खाया तुमने? She was pretty normal about it. Until and unless that money came into our bank account, all the press release happened, everybody started talking about it. Nobody believed it. यार मैं ऐसा इंसान था जो आके बोलता था मैं एक दिन इतने करोड़ कमाऊंगा, मैं ये करूंगा। लोगों को वैसे लगता था नहीं पागल है। तो इसकी पागलपन में एक और चीज ऐड हो गई। हाँ। कि इसको लग रहा है इसकी कंपनी कोई खरीदेगा। Why will somebody buy his company? ऐसा कुछ इनोवेटिव तो नहीं है ना। हाँ। मतलब जितना मर्जी मैं फट्टे मार लूं कि वो स्टार्टअप था, ये था, वो था, आई वाज रनिंग अ स्टूडेंट हाउसिंग कंपनी XYZ, ये वो था। तो वो बिजनेस ही ना, पीजी बिजनेस था। करेक्ट। कोई क्यों खरीदेगा उसको? पर खरीदा, पैसे भी आए। ग्रेट। जिंदगी भी बदली। कहते हैं लोगों ने क्रिप में पैसा भी इसलिए दिया कि सनी ने पहले एक कंपनी बेची हुई है। सनी को भी नहीं पता क्यों बेची हुई है, किस लिए बेची हुई है, कैसे बिकी। वेरी इंटरेस्टिंग। पर ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग अ लिटिल बिट अबाउट सनी। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मैंने एक चीज देखी इन योर जर्नी, लाइक whoever I've spoken to about you, they look at you, most of the people look at you as a, कैसे, I don't know what's the right word to use, as a bhaiya figure is different, but somebody who you go to when you're in trouble, the first call you make when things are not working, when you need guidance. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। यार ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है there are 2 reasons for that. हाँ।
वन इज मैंने अपने हाथ बहुत जलाए हैं हाँ. और जो लोग लुक अप टू करते हैं उन्हें पता है स्टोरी कुछ ना कुछ. Right. There are a lot of stories that don't come, like that doesn't come to these podcasts. Correct. So they know about this and they know I've dealt with a lot of things in life around that, and they know that इसने कुछ किया हुआ है तो इसके पास सोल्यूशन होगा. दूसरा, आई लाइक हेल्पिंग पीपल. मतलब मेरा मानना ये है, ठीक है पैसा वैसा एक तरफ यार, इट इज अबाउट हाउ यू ग्रो इन लाइफ and how people around you grow in life. Like even if we have done a podcast together, you call me tomorrow at 3 a.m. and ask me for help, I will pick up your phone. Yeah. I will try to help. Yeah. If I am able to help or not, that's a different issue. Difference, obviously. But my intention will always be there to help you. And I have learned this from the best of the people. See, networking is not about how many people you know. It is always about how many people you have done something for. Correct. I know there are 20 people who will come tomorrow if I am in trouble. Correct. Because I was there when they were. When you were, yeah, exactly. But I want to know that जब मैंने आपसे एक question पूछा था, when I asked you about the college days, you said that मेरे पास कोई नहीं था. Like you said, there was nobody who guided me or mentored me or told me ये करिए मत करिए गलत है सही है. Do you also think because you probably did not have a figure or somebody to guide you or mentor you, it comes to you naturally कि यार मैं लोगों की मदद कर दूं in whatever capacity? Definitely. मतलब पेरेंट्स की वैल्यू उन्हें ज्यादा है ना जिनकी नहीं है. करेक्ट. हम लोग तो अपने मम्मी पापा को यही बोलते रहते हैं, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते. कभी उससे जाके पूछो जिसके नहीं है. सही बात है. वो तो डांट खाने का भी वेट कर रहा है. राइट. जिंदगी भर उसने डांट खाने का ही वेट किया है. या When you don't have something, you value it more. And कॉलेज टाइम में नहीं थे मेंटर्स, आज कोई कमी नहीं है. मतलब मेरे को एक चीज रियलाइज हुई लाइफ में, नो मैटर हाउ मच यू ग्रो, एंड अभी तो देयर इज अ वेरी लॉन्ग पाथ आई सी फॉर माय ग्रोथ इन लाइफ. देयर विल ऑलवेज बी समबडी हु इज एट अ नेक्स्ट स्टेप, who has done something you want to do in life. 100%. And taking advice from them never hurts. सही बात है. And unless and until you are somebody who likes to give back to the society, nobody will give back to you, no? Like you took Akash's name, you took Arjun Vaidya's name, all these people, they have been really helpful in our journey. They have invested in Crib also, they have made connections also. Yeah. Arjun Vaidya to has even helped me to an extent wherein when I shifted to this house, I wanted to buy a bed from Wakefit. अच्छा. And the delivery time was 25 days later. Okay. And I wanted a bed urgently. हाँ. So I called him up and cribbed about it कि मुझे बेड चाहिए. He gave me Wakefit का founder का number, dropped him a message. I talked to Wakefit founder and he got the bed delivered in next 5-7 days. समझ रहे? ये होती है. So you need to make those Connections. I also feel it's a lot about actually making true professional or whatever valuable relationships rather than looking at it as a transaction. It's never about a transaction. But people नहीं. We are saying this जब हम बात करते हैं, पर आप यार LinkedIn को क्या बना रखा है लोगों ने, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म आप बोल रहे हो, what are people doing? Do you really think, I'll ask you this question, जब कोई आपको reach out करता है, budding entrepreneur or a founder, let's say, कि सनी है, I admire the work you do or whatever, great connecting, आपको पता है कहीं ना कहीं अल्टीरियर मोटिव तो कुछ निकालने का ही है ना, कुछ ट्रांजैक्शन तो चाहिए इस बंदे को आपसे. दुनिया ही ट्रांजैक्शंस पे चल रही है. हाँ, so now my question is, in this ecosystem, because now you've been a part of it, you know the people in the, I would say VC space also, you know of a lot of founders also, there are angel investors, you're well connected, I would say, in the creator ecosystem in a way as well. जब आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हो अभी as of now, where do you think people are going wrong with networking and building connections? Because I think you've done it very well. यार, people are not understanding the definition of networking, right? मतलब तुम मुझे जानते हो won't help you. Just knowing a person. क्या मैं तुम्हारा रात के 2 बजे फोन उठाऊंगा वो will help. Not even रात के 2 बजे, क्या मुझे रात में 8 बजे फोन उठा के तुम्हारी हेल्प करूंगा या नहीं, will help you. A lot of people claim कि वो मुझे जानते हैं, फ्रेंड्स हैं, ये वो, नहीं करूंगा ना भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ. And a lot of people are there in my life also जिनको मुझे लगता है कि कुछ कर देंगे, नहीं करेंगे कुछ. हाँ, वो भी है. True. Both ways. पर and मतलब the basic principle is before extracting value from somebody, you have to provide value and give value. Will give value. मतलब there are big founders also, very, like I am a very very small founder, there are way bigger founders. I have helped them in different ways. हर आदमी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. Yeah.
अगर तुम्हें नेटवर्क बिल्ड करना तो कोई किसी एक की प्रॉब्लम पकड़ के सॉल्व कर दो. Got it. So I think आप ये बोलना चाह रहे हो कि till the time you don't have something substantial or value adding to at least help them in any aspect of life, आप 0.1% भी कुछ value addition नहीं कर सकते हो, फिर तो कोई मतलब है ही नहीं. यार मैं मान लो आप बोल रहे हो कि आप राइटर हो अच्छे, हाँ, एंड यू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है. ठीक है, हाँ, यू वांट वैल्यू आउट ऑफ मी, हाँ, आप मेरे लिए 4 लिंक्डइन पोस्ट लिख के दे दो ना. हाँ, right. You can read about my story online. Yeah. You can go through my podcast. You can know कि क्या स्टोरी ऐसी जो मैंने लिंक्डइन पे नहीं डाली. 4 पोस्ट लिख के भेज दो किसी बड़े फाउंडर को, आएगा रिप्लाई. 100% आएगा. 110% 10% आएगा. पर वो करेगा ही नहीं ना कोई. 99% लोग वो स्टेप लेंगे ही नहीं. Hi, hello, what's up? How are How you? are you? I am inspired by your journey. Will you help me? This won't help. This is the only thing that will not help. आपको किसी से रील एडिटिंग का काम लेना है, उसके सोशल मीडिया से 4 रील उठाओ, एडिट कर दो ना बेटर. हाँ, सही बात है. अपने आप काम मिल जाएगा यार. This one shows your interest in working with them. Correct. You are serious with it. आपने एफर्ट लिया ना. आपने एफर्ट लिया. लोग कहते हैं मैं 100 लोगों को मैसेज डालूंगा. 100 को क्यों डालना भाई, 10 पकड़ लेना अच्छे. Right. There are 2 strategies of doing it. First is also right, second is also right. I feel second is better. Better. सही बात है. Very interesting. नहीं मतलब I align with everything that you said and I think क्योंकि when I also see जैसे if students reach out या working professionals हैं, भाई आई एम अ करियर कोच, पर आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं आपकी जॉब लगा दूंगी. मैं आपको जॉब में एक्सेल करने के लिए या हाउ टू गेट अ गुड जॉब उसमें हेल्प करती हूँ. पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. आप एचआर समझ रहे हो मुझे, ठीक है, चलो समझ भी रहे हो. पहले मैसेज में आप मेरे से जॉब मांग रहे हो. आप क्या हो, क्या करते हो, आपने प्रीवियसली क्या किया है. मेरे चचेरे चाचा के बेटे थोड़ी हो वही तो जो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा या कर दूंगी. आप जॉब मांग रहे हो पहले ही मैसेज में. मेरा मन करता है बोलने का, अगर इतना आसान होता जॉब मिलना तो क्या सबको नहीं मिल रही होती. नहीं मिल रही होती. वही बात है. लोगों को बेसिक्स समझ नहीं आ रहे. नहीं आ रहे हैं. और मैं चाहता हूँ लोगों को ना समझ में आए बेसिक्स. फिर हमारा क्या फायदा होगा. मतलब अगर एवरीबडी आज मैं 100 में से 4 अच्छे लोग छाट सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है उन 4 लोगों को आता है. करेक्ट. सब 100 के 100 को आ जाएगा तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा. फिर मैं कैसे छाटूंगा 4-5 बढ़िया है यार. क्यों दुनिया को चिक के बताना तुम लोगों को पॉडकास्ट पर हर चीज. नहीं बता, कुछ चीजें बतानी चाहिए. ठीक है, बट विद दैट सनी थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द जर्नी ऑफ obviously after selling the company. What was it like? Did you think of something immediately? Did you decide चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़े से पैसे उड़ाते हैं जो कमाए हैं, या जस्ट एंजॉय करते हैं इस फेज को? यार मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने कंपनी बेची और कोविड हो गया. अच्छा, इमीडिएटली. आई सोल्ड माय कंपनी दिसंबर 2019 एंड मार्च में तो वो आ गया था कोविड. तो मेरा तो पैसा ही अटक गया था. स्टैंजा ने पैसे ही अटका दिया था. तो 6-8 महीने 1 साल तक तो मैं उनसे लड़ता रहा, भाई पैसा दे दो मेरा. हे भगवान. ओके. वो 1 साल तक तो थोड़ा एंजॉय भी चल रहा था, थोड़ा वो भी चल रहा था, कहते ना डिस्कशंस ये वो. हाँ. और मुझे ऐसा लगता है कि when you are fresh out of a relationship ना, should not get into a new relationship. You'll always fuck up. Always. It's good about relationships also. It's about business also. Anything I did after your shell, I just lost money. Right after. Right after. Like I don't remember even a single thing in the next 6 months to 1 year after your shell where I made money. I used to think of an idea, we used to do it, and Shefali used to lose money. And this was going on repeat. Because when you give so much money to a 21, 22-year-old kid, They don't know what to do with it. we didn't know life existed beyond North Campus. Yeah, we didn't know who XYZ person is, how to do things. We thought we have arrived in life. वो सर पे चढ़ जाती है यार. सही बात है. और जब वो सर पे चढ़ता है तुम्हारे तो तुम वो आप अलग जोन में होते हो. अलग जोन में होते हो. मैं ही भगवान हूँ. जो डायलॉग है ना सेक्रेट गेम्स का, अपन ही भगवान है. वो फीलिंग दुनिया की सबसे गलत फीलिंग है एक्चुअली. दैट डिस्ट्रॉयज यू. एंड मैंने इतना नुकसान किया उस फीलिंग में, इतना नुकसान किया क्या ही बताऊं. मुझे एक बात बताओ, जब पैसा आता है and when you're young, obviously you feel like this is great, the feeling is great, people around you start looking at you in a different way. वही दोस्त जो कॉलेज में कुछ बोलते हैं समझते भी नहीं होंगे, they are like आप ही भगवान हो, ठीक है. बट देन माई क्वेश्चन इज यार, वो 21 साल का बच्चा या कोई 20 साल का बच्चा, इसको एस्केप तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट हाउ डू यू स्टिल इंश्योर कि वो चढ़े ना सर पे? इज देयर अ वे? चढ़ने दो. जब तुम फर्स्ट फ्लोर से कूद के गिर के चोट खा लोगे
तो तुम सेकंड फ्लोर से कूदने का कभी ट्राई नहीं करोगे। अगर वो उस दिन ना चढ़ता तो वो आज चढ़ता, आज ना चढ़ता तो 5 साल बाद चढ़ता। बेटर है पहले हो जिस गया। दिन मैं यूनिकॉर्न फाउंडर बन जाता है, पब्लिक लिस्ट कंपनी कर देता, उस दिन चढ़ता। हाँ जो डैमेज उस 21 साल के बच्चे ने करी सर पे चढ़ने के बाद, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख थी, ठीक है, जो वो डैमेज अगर मैं 10 साल बाद करता तो वही 50 करोड़ होती। करेक्ट, तो मेरे को कितने का फायदा हुआ? 49 करोड़ 50 बहुत, लाख हाँ। का। तो चढ़ने दो ना। सही बात है, जितना जल्दी हो जाए सीख जाओ बेटर। मिड लाइफ क्राइसिस हो जाता है। और अगर जितना जल्दी, लोग कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस नहीं होना, जो जितना जल्दी हो रहा है होने दो। यू विल लर्न फ्रॉम इट, या you will mature over the process, you will learn new things, you will get better as a person, या ट्रू, you will start respecting people more. पैसा कमाना आसान है, पैसा बचा के रखना और मुश्किल है। आई फील पैसा कमाना आसान है बट पैसे को सस्टेन करना मुश्किल है। वही सेम Anybody can earn money, but no, but very few people can retain and वो sustain लाइफ it. स्टाइल चेंजेस, वो लोग चेंज हो गए तुम्हारे अलावा, तुम्हें नए शौक लग गए, गाड़ियां लेनी है, घर लेने हैं, गोवा ट्रिप्स पे जाना है, ये सब करना है, ये सब क्या ना Never ending है। नेवर एंडिंग है। जितना मर्जी पैसा खर्च लो यार, और कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता कि वो खर्चने का कोई सीमा ना हो। मतलब तुम 2 करोड़ कमाओगे, तुम 20 लाख की गाड़ी लोगे, तुम 20 करोड़ कमाओगे, तुम 2 करोड़ की गाड़ी लोगे, तुम 200 करोड़ कमाओगे, तुम 20 करोड़ की गाड़ी ले लोगे। सही बात है, तो ये खर्चे कभी खत्म नहीं खत्म नहीं होंगे। ये सिर्फ एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे विद योर इनकम। तो you don't lose the essence of you when money comes is what makes you a good person. True. मतलब I know that I am a very down to earth, very normal human being. मतलब मेरे को पता था मैं हमेशा से कि हाँ यार मैं चिल आदमी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम आगे मेरे से बहुत देसी तरीके से बात करोगे, मैं बिल्कुल देसी इंसान हाँ। और वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी रिस्पेक्टिंग इंसान हूँ। उस टाइम पे आई चेंज्ड एज अ पर्सन। कौन है ब्रो तू जानता है मैं कौन हूँ? एंड व्हेन यू गेट दिस फीलिंग, तू जानता है मैं कौन हूँ, हाँ, बस that's the beginning of an end. या तो तुम उस एंड के कितने पास जाके वापस आए हो, वो डिपेंड करता है। तू जानता है मेरा बाप कौन है, तू जानता है मैं कौन हूँ, are the feelings that destroy you as a person. Yeah, no, I'm glad that you actually said it because बहुत कम लोग मानते हैं या बोलते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। यार what is there not to accept? यार लोगों को नहीं अच्छा लगता है टू बी वोकल अबाउट द फैक्ट कि ऐसा हुआ है या मैं ऐसा सोचता था या सोचती थी। मैंने तो बहुत सोचा, 6 महीने तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं ही हूँ जो। यू आर द वन। अब तो कुछ भी कर लो तो लगता ही नहीं है ये। मतलब अब तो 30 under 30 भी आया, उस दिन भी आई वाज लाइक हाँ चिल, एवरीबॉडी वाज अराउंड मी, वाज सेलिब्रेटिंग, पोस्टिंग स्टोरीज, ये मैंने कहा ठीक है, ओके डन, नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, हाउ इज बिजनेस, व्हाट इज टू बी डन इन बिजनेस, ये इससे बिजनेस में क्या फायदा होगा, कैन वी एक्सपैंड फ्रॉम इंडिया टू एशिया, शोइंग दैट वी आर एन एशिया रिकॉग्नाइज्ड कंपनी, राइट। दैट्स हाउ द थिंकिंग हैज चेंज्ड। अगर तुम 21 साल के सनी को 30 under 30 दे देते ना, वो अपने घर के बाहर पोस्टर छाप देता वो 30 under 30 का। और किसी को मोहल्ले में मिठाई, किसी को मोहल्ले में मिठाई, पूरे दिल्ली को मिठाई खिलाया था। और तुम मेरे को हेलो बोलते, तुझे पता तू किससे बात कर रही है, हेलो सर बोल यार। तो वो कहते ना दैट फीलिंग इज वेरी नेसेसरी इन लाइफ। या द पीपल वी वर टॉकिंग अबाउट बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्टेड, या they have not realized that that feeling is you have to realize that you have to to be able realize that this feeling will destroy destroy, yeah, और even if it doesn't destroy you monetarily, correct, ठीक है मैं मानता हूँ पैसे का, ठीक है जितने का नुकसान होता है तुम कमा लोगे दोबारा, it destroy you as a human being, yeah, people stop respecting you, yeah, people stop talking good things about you. मतलब मुझे ऐसा लगता है पैसा तो वैसा ठीक है यार, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, when you die as a person people should talk good about you, obviously यार। मर गया साला नहीं बोलना, नहीं बेचारा मर गया बोलने दो यार। ट्रू, नहीं सही बात है। मैं ये सोच रही थी कि जब ड्यूरिंग द योर शेल टाइम नहीं, आफ्टर योर शेल व्हेन यू सेड यू ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ नहीं चल रहा था और पैसे डूब रहे थे, नथिंग वाज गोइंग वेल, do you remember of some people who were there at that time who really helped you or were there to support you or just tell you that probably this is not the right thing? या उस time पे भी you think you didn't really have people who were नहीं You did? one thing that phase did with me is segregated people. कौन पैसे के लिए कौन नहीं, like आपको समझ में आ गया होगा। like I have this one cousin of mine, उसके husband, his name is Kapish, he has been a very very supportive person throughout my journey. मतलब okay,
the first time I wanted money, he was the one who gave it, not even my dad. Okay. मतलब मुझे कुछ करना है इस बात के लिए, I took some, he is a wood distributor or a manufacturer you can say. हाँ. हमने अलमीराज बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए उनसे लकड़ी ली थी. उन्होंने पैसे मांगे, मैंने बोला अभी नहीं है, थोड़े दिन बाद देता हूँ. फिर उन्होंने बोला थोड़े दिन बाद देता हूँ. ऐसे करके मैंने 3-4 बार पेमेंट डाल दी. एक दिन उन्होंने मुझे बैठाया, एंड मेरी उनसे तब इतनी अच्छी बनती नहीं थी. हाँ. एक दिन उन्होंने मेरे को बैठाया, बोलते क्या हुआ, पैसे क्यों नहीं दे रहा. एंड आई बर्स्टेड एज आई वाज अ किड, 18 ईयर ओल्ड किड. मैंने कहा नहीं है मेरे पास पैसे. कह रहे क्यों नहीं है. मैंने कहा ऐसे ऐसे गड़बड़ हो गई, यहाँ लग गया. कहते कितने और चाहिए गड़बड़ सॉल्व करने के लिए. मैंने इतने. कहते कल आके मेरे से ये और ले जाइए, दे देगा ना वापस. मैंने कहा दे दूंगा. एंड ही नेवर टोल्ड माय डैड आल्सो अबाउट इट. देयर वाज अ टाइम ही लोन्ड मी मोर देन 75 lakhs. Okay. Liquid 75 75 lakhs. Some his money, some his friends' money. Never talked about it. Never told my dad also. I repaid everything with all the interest and everything. Yeah. But he was always there when all this paisa doobne wala thing happened, or Stanza didn't give my money, or whatever was happening during that time, he was always there. And I think that would have also taught you a lot about the fact कि obviously those people like you said, जिन लोगों ने मुझे जब कुछ नहीं था and things were not right, they were there with me at that time. उनके साथ मैं ना रहूं right now, rather than just the new friends who are coming along right now. जो वो लोग हैं जो तब थे जब योरसेल शुरू किया था. हाँ. जब ऐसे ब्रोकर बन के घूमते थे यार, क्या कहते हैं, योरसेल के बाद वाला टाइम तो फिर भी ऐसा यार, बहुत लोग फेक थे. हाँ. मैं I'm sure. बताता हूँ वो लोग ट्रू थे जो जब थे, जब जिन्होंने जब बिलीव किया जब किसी ने नहीं किया. Yeah. Like Shafali compromised every dream of hers to become a partner with me. She had something she wanted to do in life. Okay. But we followed this path of hostels and everything. Yeah. And she believed in me even before anybody else did. मतलब वो कॉलेज में बोलती थी वो एक दिन बहुत बड़ा entrepreneur बनेगा. And when I asked her, you want to partner with me? She didn't say no. She was like, हाँ, why not? Why not? And she has always been supportive throughout. Next year we'll complete 10 years of working together. Oh wow. 10 years, day and night we have worked together. So, and we have seen all the goods and bads in life. Yeah. तो कहते हैं ना उस जैसे लोग जो क्या लोग मेरे से आज बोलते हैं, why do you have her as a partner and not as somebody else, or what? Bro, she was with me when nobody was when we there. were making 5,000 rupees in brokerage. Yeah. And used to split 2,000. Who else then? Obviously. हाँ, तो वो कहते हैं ऐसे लोग जिन्होंने उस टाइम पे बता देता कि सनी तू जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा और हम अपने ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज करके we will make your dreams our dreams. Yeah, correct. That was a big thing. Right. मतलब कहते हैं ना कि तुम अपना सपना छोड़ दो पर किसी और के सपने के लिए आप उस विजन किसी और के सपने को अपना सपना बना लो, because you believe in their dreams more than your dreams. That's a very big thing. That is a very big thing. Archit, for example, he was working fine in Microsoft, used to make 4-5 times of his current salary at Crib. मतलब वो आदमी अभी तक जैगुआर ले चुका होता, उसका इतना पैकेज होता अभी माइक्रोसॉफ्ट में. I'm sure. हाँ. 1.5 करोड़ से कम का पैकेज नहीं होता. हाँ, आराम से. He compromised everything and like ठीक है ब्रो, तुम दोनों ये कर रहे हो, मेरे को भी ये करके देखना है, चलो करते हैं. Yeah, but question ये है Sunny, that how does somebody, those I know you can't answer for Shefali or Archit, but what is it that someone feels or goes through or is able to experience कि यार हाँ इसमें कुछ है जो हो सकता है, like how can somebody be so, जब आप करियर की भी बात करते हो, जैसे मैं बच्चों से बात करती हूँ, हमें मार्केटिंग भी करनी है, मुझे UI UX डिजाइन भी करना है, मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी है, सब करना है, तो बट हाउ डिड दे नो कि यार इसके साथ टिकेंगे तो सही है एंड वी वांट टू डू दिस, जो करके अच्छा लग रहा. माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब छोड़ना दोबारा मिल जाएगी ना. So, but at no point did he ever feel. He feels it every 3 months कि bro हम पैसा कब कमाएंगे. तो ये तो he gives me भाई मैं सोचूं he gives me a quarterly call saying कि bro हम पैसा कब कमाएंगे. And he doesn't understand, like when he joined up, he understand. When he joined me, he doesn't understand any like equity क्या है, valuation क्या है, पैसा कैसे आएगा. मैंने बोला ये करेंगे, उसने बोला ठीक है मैं बना दूंगा. And he sits at home. अर्चित का रोल क्या है? CTO है. अच्छा. And he builds tech the whole code, builds the whole tech team, सब कुछ किया उसने. Nice. But अभी भी मेरे को हर क्वार्टर पूछता, ब्रो हम पक्का पैसा कमा लेंगे ना. कह रहा देख मुझे पता है हम कमा लेंगे, पर मैं एक बार तेरे से सुनना चाहता हूँ. उस दिन मुझे फोन करके बोलता, कहता ब्रो ऑफ साइट करा ले कंपनी की. अच्छा. मैंने कहा बहुत टाइम से बोल रहा है, क्योंकि टेक वाले वर्क फ्रॉम होम है, तो ऑफ साइट इज द ओनली प्लेस जहां where they get to interact and meet. मिलते हैं. तो मेरे को फोन करके बोलता, ब्रो देख अभी तक तो तेरी सरकार चल रही है, अगर तूने ऑफ साइट नहीं कराई
तो मैं नितिशा नायडू बन जाऊंगा, तेरी सरकार गिरा दूंगा। तो चुपचाप ऑफ साइड करा के दे मुझे। आई वांट टू इंटरेक्ट विद द टीम, आई वांट टू मीट द टीम, आई वांट द होल टीम Team टू to फील be, लाइक अ yeah, फैमिली। yeah. So कहना he is that वो fun guy who builds the whole code. He has a daughter. He's my schoolmate. Okay. But he married early. He has a Nice. daughter. He looks after her also. Very very. मतलब I have very two cute co-founders who her Shefali for example has 3 dogs. Spends the whole time. इन दोनों को जिंदगी में अपनी जिंदगी के अलावा किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत फोमो में आ जाता हूँ, इस इन्फ्लुएंसर के इतने फॉलोअर्स हो गए, इसने ये गाड़ी ले ली, इस फाउंडर ने ये सीरीज उठा लिया, ये कर लिया। आई गेट इनटू अ लिटिल बिट फोमो, थोड़ा बहुत हो जाता है जो नॉर्मल ह्यूमन में। हाँ। इन दोनों को मैं जाके बताता हूँ, कहते हैं ठीक है और बता, तुझे पता कल मेरे कुत्ते ने ये किया, या बेटी की फोटो भेज देगा कल उसने ये किया। दीज गाइस डोंट गेट इनटू फोमो एट ऑल। तो मतलब इनसे इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, अपनी लाइफ में कैसे खुश रहना है, वो नो बेटर एग्जांपल देन बोथ ऑफ देम। आई थिंक कंटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंटेड रह पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। एम्बिशियस होते हुए कंटेंटेड रह पाना, दैट इज कंटेंटेड बहुत लोग हैं। कंटेंटेड वो आदमी भी है जो गार्ड की नौकरी कर रहा है, सुबह जाके सो जाता है, रात को आके बैठ जाता है, पूरी रात काम करता है। कंटेंटेड वो भी है। Being fuel driven, ambitious and still being contented. That's a killer combination. I feel. Even I don't feel I'm content. I also feel like यार ये और कर लेता हूँ, इससे थोड़ा और पैसा आ जाएगा, क्रिब में भी ये स्टार्ट कर देते हैं, ये सीरीज उठा लेते हैं, इतना रेवेन्यू बढ़ा देते हैं। मतलब वो हमेशा रहता है यार, इसने ये कर लिया, मेरे को भी ये करना है। मतलब accepting this is bad or publicly, but yeah, it happens to everybody. Yeah, it happens. That's a human nature. It is human. You have You're to bound to. हो ही जाता है, आप कितना भी try करो. But since you were speaking about Archit and Shefali, and obviously we are talking about Crib a little bit also, Sunny, मुझे थोड़ा ये बताओ कि like जैसे when I look at entrepreneurs and मैं पूछती हूँ उनसे कि do you think is it important or necessary to always have a co-founder when building a business? Or everybody has a different opinion. So I'm not going to ask you कि आपको लगता है होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेरे टेबल उठा के वहां रख दो। मैं अकेले नहीं रख सकती। You gave the answer. But there are businesses जो अकेले भी कर रहे हैं ना सनी। ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो उठा के रख देते हैं टेबल। आप नहीं रख सकते अकेले, मैं नहीं रख सकता। नहीं, मैं पूरा नहीं अकेले रख सकती। मेरी टीम में एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, ही वर्क्स इन द सेल्स, ही लीड्स द सेल्स फॉर क्रिब। अब है उठा के रख देगा पूरी। अब तुम्हें टेबल उठा के रखनी है, क्या तुम्हारे पास वो पूरा स्किल सेट है? Abhay will not need a co-founder to put the table aside. You and I will. Okay. Are you getting me? What I get it. I'm understanding the point. What you want to achieve in life, do you have enough skill set to achieve it alone? If not, do it. And yeah, मेरा तो ये मानना है. I said this in one of my speaker sessions very early on in 2019-20 when somebody asked me, why do you need a team? Why do you need a team? अच्छा. When you see the Batman movie, which is the city they talk about? मुझे नाम याद नहीं आ रहा। Gotham City. Gotham City, हाँ। Batman बचाएगा Gotham City को। Have you seen Justice League? No. When they talk about Justice League, they talk about दुनिया खतरे में, वर्ल्ड बचाना। हाँ, ठीक है। गौतम बचाना है तो बैटमैन चाहिए, पर बड़ा कुछ बचाना है तो पूरी जस्टिस लीग चाहिए। And Justice League has 7 members. That's the importance of team. You need a Flash, you need a Batman, you need a Superman, you need a Wonder Woman, you need every. क्योंकि सबका स्किल सेट अलग है। अलग है ना। तेज भाग के कुछ उठा के लाना है तो बैटमैन नहीं उठा के ला पाएगा। कुछ स्ट्रॉन्ग करना है तो वो सुपरमैन ही करेगा। फ्लैश नहीं कर पाएगा। करेक्ट है ना। कुछ बहुत इमोशनल करना है या कुछ EQ लेवल करना है तो वो वंडर वुमन कर सकती है, और एंड शी इज स्ट्रांग आल्सो। या तो वो वाली बात है कि you have to figure out what are the requirements you have to do a particular thing, and how you can solve that. True. No, I think that's very well said also. So when you realize कि चलो मेरे पास complete skill set नहीं है to build crib, या जो भी मेरा vision है उसको मैं अकेले achieve नहीं कर सकता हूँ। Shefali का तो you told me she was one of the first people right from college days only that she told you to कुछ co-founder in ECEL also. Oh, wow, very nice. तो आपको अर्चित फिर कैसे मिला, and how did you team up and you know make this decision कि हम तीनों एक साथ आएंगे? When I sold Yourself ना, I realized one thing. 10-20-50 करोड़ कमाने हैं तो नॉन टेक हो जाएगा, पर वो 500,000 वाली बात करें तो कुछ टेक करना पड़ेगा। दो ऑप्शन है। अच्छा। तो तू और शेफाली में से एक बंदा कोड करना सीख लो। अर्चित तब भी था? नहीं। या कोई ऐसा बंदा ढूंढ लाओ जिसको कोड करना आता हो। अच्छा, बहुत सुपर कोड आता हो। फिर
कमिंग फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल स्कूल, मैं तो किसी को जानता भी नहीं था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मेरा था नहीं, नॉर्थ कैंपस के बाहर से मुझे किसी को कुछ पता नहीं था, तो मेरे नेटवर्क में इंजीनियर वही हो सकता जो मेरे स्कूल में था। मेरे स्कूल का बेस्ट इंजीनियर था अर्चित। स्कूल का? हाँ, स्कूल का। Okay. We have been friends since our second grade or third grade. तो we used to make fun of each other. तू क्या करेगा कॉमर्स लेके, मैं तू क्या करेगा साइंस लेके। And I realized इसको साइंस आती है, और मेरे को ऐसा लगता था जो इंजीनियर उसको वेबसाइट बनानी तो आती होगी। So I invested in a company and they wanted to get a website made. Okay. तो मैंने बोला अर्चित को पकड़ के लाता हूँ मैं। This is a good way to introduce a new character in our life. तो I got Archit on board and Archit was working with some company back then. Microsoft ही कर रहा था शायद। तो उसने बोला ये मैं तो नहीं बनाता, कोई और बंदा बना देगा, आई विल सुपरवाइज। दैट प्रोजेक्ट फेल्ड मिजरेबली, द स्टार्टअप आल्सो एंड द वेबसाइट प्रोजेक्ट आल्सो, बट आई रियलाइज दैट दिस गाय इज स्मार्ट। वो तो बचपन से भी पता था, पर वो फिगर आउट हो गया कि यार ये लौंडा बढ़िया है, ये लौंडा मुझे मेरे जस्टिस लीग में चाहिए। देन स्टार्टेड अ जर्नी ऑफ फिगरिंग आउट क्या करना है हमें जिंदगी में, और इस आदमी को ऑन बोर्ड लाना है। दैट्स अ 1 year जर्नी पूरा। वी टुक विद हिम, वी मेट हिम मल्टीपल टाइम्स, इंट्रोड्यूस्ड हिम टू शेफाली एंड दे him figured out Shefali handles product, he handles tech. Yeah. तो उन दोनों की इतनी बात होती है जितनी नहीं होती होगी। मेरी और अर्चित की क्वार्टर में उतनी बात नहीं होती जितनी अर्चित और शेफाली की 2 दिन में होती है। Yeah. तो दे हैड टू बी गुड फ्रेंड्स। वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया, वो सब कुछ, मतलब यार बिल्डिंग अ कंपनी इज नॉट अ वन डे जॉब। डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर बन सकते हो तुम एक दिन में, बन सकते। एक वीडियो वायरल हो एक दिन में नहीं, 1 घंटे में एक वीडियो तुम्हारी वायरल हो गई तो तुम बन गए। कंपनी नहीं बनती, नहीं बनती है। बिल्डिंग अ लार्ज एंटरप्राइज टेक्स 10 to 15 years. 100%. The Sunny who started Crib thought that Crib will become an unicorn in 3 years. I will not lie here. I always thought 3 साल unicorn. Because वो सनी वो था जिसके सर पे चढ़ा हुआ था, सनी तो भगवान है। 3 साल में यूनिकॉर्न बना के फेंक दूंगा मैं। पहला राउंड 6 महीने बाद, दूसरा राउंड 6 महीने बाद, तीसरा राउंड 6 महीने बाद, चौथा राउंड 6 महीने बाद, पांचवा राउंड बन गया यूनिकॉर्न। सही। This is what I thought. This is what I heard in news. वो इसने इतने पैसे उठा लेते पैसे। When you start doing things ना, you realize 3 साल छोड़ 15 साल में बन गया ना, तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया में 140 करोड़ में से 106 यूनिकॉर्न है, तो 1 करोड़ में से 1 की प्रोबेबिलिटी है, वो भी 1 करोड़ से ज्यादा में से 1 की प्रोबेबिलिटी। करेक्ट। तो it will take time and companies like, and I think it should take time. It should take That's the right way to build it. जो 1 घंटे में इन्फ्लुएंसर बनेगा ना, उसको वो अच्छा इन्फ्लुएंसर नहीं होगा, क्योंकि उसकी ऑडियंस लॉयल ही नहीं होगी। सही बात है। जिसने 3 साल लग के इन्फ्लुएंसर बना है, वो है इन्फ्लुएंसर। Right, very well said. So आप obviously अर्चित से मिले through the startup interaction and that website that failed, but you recognized कि भाई ये बंदा तगड़ा है, चाहिए मुझे टीम में. You got him on board. When you started building Crib with Shefali and Archit, during the initial days, मुझे सबसे बड़ा challenge जो आप लोगों ने face किया in building the startup from ground up, वो बताओ. What was the main hurdle that came your way? यार Early days, let's say first 6 months to the 6 months से लेकर 1 year का जो period था. कुछ चैलेंजिंग है यार. Every part of the startup journey is challenging. Every day I start my day, there is a challenge. बहुत बार तो ऐसा होता है कि सुबह 9:30 बजे किसी ग्रुप पे कोई मैसेज आता है, कुछ फट गया, किसी टीम में कुछ हो गया, किसी क्लाइंट के साथ कुछ हो गया, किसी इन्वेस्टर के साथ कुछ हो गया. This is the challenge is equal to entrepreneurship. 100%. If you are not facing challenges regularly, you are operating under your limit. And I and Shefali have always believed to operate over and above our limits. So we face challenges every fucking day. Every day starts with, oh, आज ये क्या हो गया? हाँ. अगर हर हफ्ते में बैठ के ये नहीं सोच रहा ना, मैं ये क्यों कर रहा हूँ अपने साथ, तो आप कुछ सही नहीं कर रहे हो. तो मैं क्यों कर रहा हूँ? फिर तो मैं कुछ आसान कर रहा हूँ ना. हाँ. Like फिर तो कुछ और ही कर रहे थे. If you are a 10-year-old kid, हाँ. मैं आपसे पूछूं 2 + 3 कितना होता है, आप क्या बोलोगे? 5. साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा कितना होता है? नहीं याद, मुझे नहीं याद. लेकिन अगर 10 साल के बच्चे को साइन इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स थीटा सॉल्व करने बैठा दो, कुछ तो फोड़ेगा ना. दैट इज व्हाई हमें पढ़ाया जाता है ना धीरे धीरे. तो मुझे ऐसा लगता है एज एन एंटरप्रेन्योर यू टेक अप चैलेंजेस एवरी डे, एंड व्हेन यू आर इन अर्ली स्टेज कंपनी, बिल्डिंग अ टीम, बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, गेटिंग इन्वेस्टर्स, गेटिंग द राइट ब्रांडिंग, गेटिंग द राइट वेबसाइट, getting the right people on board, everything is a challenge. हर जगह सब कुछ कितना फटेगा तो तब जब बनेगा. सही बात है. बनाना ज्यादा बड़ा चैलेंज है. इस पूरी दीवार को खड़ा जिसने किया वो ज्यादा चैलेंज था ना. अब तो अगर इसमें पेंट खराब हो गया तो फिर भी ठीक है, सॉल्वेबल हो ही जाएगा. हाँ. तो वो इट्स अ गुड जर्नी ऑल टुगेदर. मतलब रनिंग अ स्टार्टअप इज सैटिस्फैक्टरी इन इटसेल्फ. मतलब
लगता है तुमको तुम कुछ कर रहे हो यार। But do you think it comes with a lot of stress and pressure also? मेरे बाल मेरे दोस्तों से पहले उड़ेंगे, मुझे पक्का पता है। नहीं उड़ेंगे तो Pressure है, stress है। यार आपने अभी आप और मैं बात कर रहे थे, आपने बोला ना मेरे इंट्रोडक्शन में मार्की इन्वेस्टर्स ये वो। डू यू थिंक दैट XYZ मार्की इन्वेस्टर will pick up my phone if Crib doesn't work out? No. Who will I be? A person who took money from them and failed. Correct. No matter what that person says right now, नहीं ब्रो मैंने तो पैसा राइट ऑफ कर दिया, तू और मैं तो दोस्त रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे, जितना मर्जी बोल ले इन्वेस्टर, मेरा कोई पैसा डुबोता है मुझे गुस्सा आता है यार। सही बात है। दोबारा तो नहीं काम करना चाहता ना मैं, जिसने एक बार डुबो दिया। तुम मेरे साथ पॉडकास्ट शूट करके ले जाओ और इसे रिलीज ना करो एंड अगेन पूछो मेरे से पॉडकास्ट करना है, डू यू थिंक आई विल पिक अप योर कॉल? नहीं। तो स्ट्रेस तो तुम्हारे पास भी है ना कि पॉडकास्ट एडिट करा के अच्छा रिलीज करना है, इस पर रिस्पॉन्स आना चाहिए, तभी अगला गेस्ट आएगा, ये सब आएगा। That's how life is. Not only entrepreneurship is challenging, everything is challenging. Right. And every challenge brings in a stress. वो ठीक है, उस टाइम पे ज्यादा फटती थी जब तुम साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा एग्जाम में बैठ के देखते थे और तुम्हें समझ में नहीं आता था क्या करना है। जितनी तब फटती थी ना, आज भी उतनी फटती। बस चैलेंजेस बदल गए हैं जिंदगी। आज का सनी उन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में क्या अलग करता है? How do you deal with stress? Very simple question. There but are it's- days and there are good days and there are bad days. What do you do on the bad days? How do you deal I with just them? hug people I love and sleep. That's it. मतलब there is nothing you can do on a bad day यार। You can eat good food. You can watch something good. You can just relax. पता है ये ऐसा है, अगर तुम्हें कहीं प्रेशर फील हो रहा है ना और तुम उसको दबाओगे तो और प्रेशर फील होगा। चोट लग गई यहाँ पे मेरे, कट लग गया, अब मैं उसको ऐसे दबाऊंगा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या होगा? और दर्द होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा। अगर मैं उस पर बैंडेड लगा के साइड रख दूं और आपसे बात करने बैठ जाऊं, आई विल फॉरगेट अबाउट इट। सही बात है। नेक्स्ट डे तक चोट अपने आप थोड़ा हील कर चुकी होगी। बहुत लाइफ में हर चीज अप्रोच करने का एक बहुत सिंपल अप्रोच होता है। वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। या ऐसे दिन भी आते हैं जब आई फील वेरी स्ट्रेस्ड, वेरी स्कैर्ड, क्या होगा, व्हाट लाइफ विल लुक लाइक, बिकॉज द काइंड ऑफ प्रेशर एंड मनी वी आर डीलिंग विद, वी हैव नॉट डेल्ट इट। या Crib has raised more than 20-25 crores, या somewhere between 20-25 crores. राइट My whole family net worth is not 20 crores, like what my dad owns and everything. या It's bigger money than I have ever seen in सीन इन life. लाइफ। या So it will come with pressure. 100%. If I don't want pressure, I should go do something which is something I've seen in life. या And we work in an industry which is very different industry. You won't not see a lot of people doing what I do. या आई एम शैम्पू, नॉट। तेल, कंघी बेच सब रहे हैं online. मतलब I don't disrespect any D2C Yeah. business, any Yeah. वो that sort. मतलब I totally respect everybody, but if you're doing आप something, एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व कर हम रहे एक हो, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें नहीं पता इंडिया पैसा देगा नहीं देगा देगा या हाँ करेक्ट। मतलब anybody who has invested in Crib knows that if it goes crazy. If it doesn't, it doesn't work out. It's a new thing. It's like building Zomato in 2012. या कि कुछ नया करना चाह रहे हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ नहीं होता। नहीं हुआ। एंड तुम एज अ फाउंडर तो ये सोचो, अब जिस इन्वेस्टर ने पैसा डाला है उसने 100 जगह डाला, हाँ तुम नहीं चलोगे कुछ और चलेगा। करेक्ट। जिस टीम मेंबर ने तुम्हारे यहाँ नौकरी करी है, तुम नहीं चलोगे, उसे कहीं और नौकरी मिल जाएगी तुम्हारे ही नाम पे। क्रिब से कोई भी आदमी निकल के जाता है, उसको 25% का एक मिलता है। पीपल नो क्रिब, पीपल नो सनीज, हु शेफालीज, हमारे पीआर का फायदा पूरा होता है। मतलब मेरे यहाँ से आज तक कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसको 20-25% का हाइक नहीं मिला दूसरी कंपनी में। बट मेरे पास तो यही है ना, जो है यही है, जो है यही है, मेरा तो 100% यही है ना। समझ रही हूँ मैं। मेरे पास तो 10 और चीजें नहीं है ना करने के लिए। दिस डजंट वर्क आउट, दिस इज रिस्की, This is it. दिस इज इट। या मेरे लिए तो इफ इट डजंट वर्क आउट, माय लाइफ विल कम टू एन एंड। वो तो फिर दोबारा उठूंगा, कुछ और बनाऊंगा, कुछ और करूंगा। क्यों? क्योंकि फाइटर हूँ। क्योंकि एंटरप्रेन्योर, वो स्पिरिट। हाँ इतना एंटरप्रेन्योर है। राइट। लेकिन अब इस चीज का स्ट्रेस, तुम मेरे साथ 10 मिनट बैठो, मैं तुम्हें 10 चीजें गिनाता हूं, तुम स्ट्रेसफुल हो जाओगे कि भाई जो सनी क्यों जीता। समझ रही हूँ मैं। गॉट इट। हम स्ट्रेस को थोड़ा हाँ। रिलीव करके हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ थोड़ा सनी, दिस इज अ क्वेश्चन दैट वाज ऑन माय माइंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पॉडकास्ट। आई रियली फाइंड द नेम
the branding and everything, the way you represent the brand online, very interesting of the company. Why did you think of naming a property management platform Crib? Like, why? What was the thought? Yeah, What's the story? there are multiple reasons. Okay. One, crib बच्चे का पालना होता है, safety, हाँ, security. हाँ. Everybody in real estate is cribbing. Hmm. कि भाई ब्रोकर ने एक मेरा बेवकूफ बना दिया, लैंडलॉर्ड कह रहा है मेरे को रेंट नहीं आया, नहीं बच्चा है. कह रहा है मेरा पंखा ठीक नहीं हुआ, तो एवरीबडी इज क्रिबिंग. हाँ. क्रिब मींस होम आल्सो. Yeah. And I wanted a name which is very simple. Like, if you have heard Crib once, Sunny runs a company called Crib, Easy to remember. Retain. and it should not signify what I do. Why? Because I want to do 10 other things also. I want to build it as an empire. अगर मैं अपना नाम पीजी से रिलेटेड कुछ रख लेता, फिर आप लिमिटेड हो जाते हैं ना, बाउंड बाय जस्ट द पीजी. अब मुझे कोवर्किंग भी करना है. फॉर एग्जांपल, वी प्लान टू लॉन्च कोवर्किंग सॉफ्टवेयर आल्सो, वी प्लान टू लॉन्च वेकेशन रेंटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आल्सो, वी प्लान टू लॉन्च एयरबीएनबी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आल्सो. डू यू थिंक मैं बोलूंगा क्रिप का कोवर्किंग सॉफ्टवेयर है तो विल यू हैव अ प्रॉब्लम? नो. अगर मैं बोलता मेरा ओके पीजी का कोवर्किंग सॉफ्टवेयर है तो यू वुड. होता, बिकॉज वो मेंटल ब्लॉक बन गया है ना, दैट इज रिलेटेड टू ओनली वन थिंग. ब्रांडिंग इज वेरी नेसेसरी यार. मतलब brand is how people perceive your product, how people perceive you. So you had clarity from the beginning that you will not just do this. We want the TAM to be infinite. We want the world to be our playground. Quite literally. वो तो दिख ही रहा है. तो मुझे थोड़ा ब्रांडिंग के कलर साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी आपसे पूछना है. Why the color purple? Yeah, when we were thinking to start, purple was Pantone color of the year. Yeah, 2020. the company with all the color cards who talk Pantone. about Pantone. Yeah. So it was Pantone color of the year. Yeah. So Pantone color of the year is the color, the most talked about color Color around in the the world. yeah. And when it is most talked about color, a lot of brands use it, and it becomes a normal color in the world of people. Like when we started in 2017, Yorshil, turquoise और teal was the Pantone color of the year. अच्छा. तो उस टाइम पे आपने टील का बहुत कुछ देखा. हाँ. Correct. स्टैंजा और हमारा दोनों का टील था. Teal color था. Yeah. क्यों? क्योंकि उस टाइम में पैंटोन कलर ऑफ द ईयर था. तो एवरीबडी स्पेंडिंग मनी टू मेक योर कलर अ नॉर्मल कलर अराउंड द वर्ल्ड. Yeah. Why would I pay for it? No, let people pay for it. हाँ. तो and purple is such a royal color. Yeah. मतलब पर्पल कलर देख के ऐसा लगता है यार It signifies कुछ royalty. महंगा है. महंगा है, हाँ. It's luxury, it's premium that way. Got it. So this was again a thought through process. सब सोच समझ के obviously you decided. यार हमारे में तो शिवाली is a good think tank in that way. Yeah. She thinks everything very detailed, very. So she's the hard worker in the group. Isn't it? The one person who does assignments for everybody in the group. Yeah. She's that person. So whenever she does something, and I also like design. I also like to think about branding, marketing. मुझे भी बहुत पसंद है ये सब. And we both have a synergy on that. Got it. Understood. Early days mein when you started Crib and I mean after the first year or so, what did you identify as the major channels of revenue that you were able to build? Like major कहाँ से आ रहा था? हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है. वी टेक सॉफ्टवेयर फीस. ठीक है. यू टेक आवर सॉफ्टवेयर, वी टेक अ मंथली सब्सक्रिप्शन. हाँ. हम आपको एक बार बेचेंगे और अब जिंदगी भर आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करोगे, हमें पैसे दोगे. ओके. हमारा सिंपल बिजनेस है. हाँ. हम उसको ना कॉम्प्लेक्स करते ना कुछ करते, ना हम ये बोलते हैं हम ऑनलाइन बेचते हैं, ना हम बोलते हैं ऑफलाइन बेचते हैं. हमें पता चलेगा आप पीजी चलाते हो, हम आपके पास आएंगे, आपको दिखाएंगे, आपको बेचेंगे और आपसे जिंदगी भर पैसे लेके इस बात को. और बहुत थोड़े पैसे लेंगे हर महीने, तो आपको पता भी नहीं चलेगा. Good strategy. अब there are multiple revenue channels we want to build on top of it, finance, ये वो etc. But basic revenue channel for Crib will always be software subscription. Software. That is why we call ourselves as a software as a subscription company, SaaS company. Right. And it's a very, very interesting model. Yeah. Like people don't understand SaaS. Yeah. If you get SaaS right, तो I come from a renting business. हाँ. मेरा बहुत सिंपल था. हाँ. एक 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, उसको बनाओ, वो आपको 5 लाख रुपए महीने का किराया देगी, और आप उस बिल्डिंग से जिंदगी भर बैठ के कमा सकते हो. Right. और हर 2 साल 1 साल में आपको मेंटेनेंस पे 2 4 5 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे. ये तो बहुत सिंपल बिजनेस समझ में आता है. अब मैं आपको बोलूं, आप उस बिल्डिंग में 50 लोग रख सकते थे, इसलिए 5 लाख रुपए किराया आता था.
अब आप उस बिल्डिंग में अनलिमिटेड लोग रख सकते हो, जितने ज्यादा लोग रख पाओगे उतना किराया खा पाओगे, बस जितने ज्यादा लोग होंगे उसके हिसाब से थोड़ी मेंटेनेंस बढ़ेगी। Isn't it a good business? This is the software as a subscription business. आपने एक बिल्डिंग बनाई which is the software you have made. Yeah. You keep renovating it, you keep maintaining it, but you can accommodate Any number of people, and yeah. they pay you subscription amount which is the rent. Right. So software as a subscription business is nothing but a renting business in itself. Very interesting way to look at it also, I think. But as India में आपने सही बात बोली, I don't think most people understand what मैंने एक बात और बोली थी कि अच्छा है ना, ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तभी तो सबको समझ में आने लगेगा तो फिर हम क्या करेंगे? सही बात है। Okay. पैसे कमाने के तरीके वही हैं जिंदगी में जो कम लोगों को समझ में आते हैं। I agree. कहते हैं ना, दुकान खोलना सबको समझ में आने लग गया, सिर्फ दुकान में कम पैसा बचता है। राइट, क्योंकि हर दूसरे इंसान के पास अब एक दुकान तो है ही। राइट, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अभी सनी टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट, since obviously we have come to a part जब हम बात कर रहे हैं where Crib is at a stage now that obviously it's funded, there are a lot of investors that are known in the market that have put in money, it's obviously doing really well and there is a name and a brand that you've built for the company in itself. Today when you, कितने लोगों की टीम होगी आपके approximately अभी? 65, 60, okay. I want to know that जब आप hire करते हो from a hiring standpoint as a founder, what are certain specific qualities that you definitely look for in people when hiring them at Crib? Yet it depends on the role. Okay. मतलब customer success में hire करेंगे तो we want somebody very delicate. Okay. मतलब who gives attention to detail, who's very responsive. हाँ. वो समझ में आ जाता है। Sales में करेंगे तो we want somebody extrovert, somebody shameless. Tech में करेंगे तो somebody who very logical. Product में करेंगे तो very logical, very good with design sense. But basic of everything is the person should be hungry. भूख होनी चाहिए। काम तो सीख जाते हो यार आप। Right. कहते ना, आप मेरे से बोलोगे कि सनी तेरे को ये कैमरा चलाना सीखना है, मुझे बिल्कुल नहीं आता, पर कितनी देर लगेगी आपके हिसाब से मुझे सीखने में? यार एक दो वीडियोस देख के थोड़ा बहुत रिसर्च करके सीख ही जाओगे। बेसिक तो सीख जाऊंगा, इतना नहीं अच्छा सीख पाऊंगा, पर बेसिक तो सीख ही जाऊंगा। सीख ही जाओगे। क्यों? क्योंकि भूख है। हाँ। अब मेरे में भूख ही ना हो, अब मुझे जितना मर्जी सिखा लो, जितना मर्जी आता हो, अच्छा नहीं होगा। टाइम पे नहीं आऊंगा, आप शूट बुलाओगे टाइम पे नहीं आऊंगा। आया ना वो टाइम पे आज। आपके और मेरे, आपने मैंने उसे एग्जैक्ट टाइम दिया था, वो आया क्योंकि उसमें भूख है। He wants to work. He wants to work with you again. He wants to work with me again. अभी बार-बार कैमरा देख रहा है। Right. अभी इसकी जगह कोई ऐसा आदमी होता जिसमें भूख ना होती, वो कहता ठीक है, आगे कैमरा लगा के बैठ जाता साइड में। Right. चलने तो जो चल रहा है। सही बात है। वो बार-बार थोड़ी ये एडजस्ट कर रहा है, लाइट्स एडजस्ट कर रहा है, नहीं यार मुझे बेस्ट देना है। हाँ। These are the qualities you look in a person when you bring them on board. Right. Got it. And from a hiring standpoint, I also want to understand that जब आप team members को let's say onboard कर लेते हो, obviously एक team एक sizable, I would say count पे आ जाती है. Do you think being able to maintain the right culture for everyone to thrive and for everyone to be able to see, you can't keep everybody happy is what I feel. That is impossible. That's how world works. That's how the world works. आप सबको खुश कर नहीं सकते हो. But how do you still ensure कि यार टीम में वो spirit रहे and everybody is at least being able to get or do things that they mostly want to do? How do you maintain that culture in the team? Yeah, we run a very democratic kind of an organization, मतलब democratic, an organization where everybody is very fluid, very flexible. मतलब हमारे नहीं है सुबह 9 बजे ऑफिस आना है, रात को 8 बजे तक बैठना है। मतलब मेरे ऐसे एम्प्लॉयज में जो 1 बजे 1:30 बजे ऑफिस आते हैं। Okay. सुबह 10 बजे कॉल स्टार्ट हो जाती है, 10 से 12 कॉल्स लेंगे, फिर नहाएंगे, धोएंगे, फ्रेश होएंगे, फिर 12:30 1 बजे ऑफिस आएंगे। ओके अबाउट इट। ऐसे लोग भी जो 5 बजे चले जाते हैं, ठीक है यार, तुम काम करो ना अपना, यू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू डू द वर्क until and unless there is no problem in the work you are doing. Accountability मतलब authority लो, accountability लो, हाँ, टाइमिंग्स, कल्चर, ये सब बन जाता है। तुम्हें लोगों को वो करने देना है जो उन्हें करना है, तुम्हें लोगों को वैसे जीने देना है जैसे रोक टोक तो उनकी लाइफ में उनके मम्मी पापा भी कर रहे हैं। ट्रू। तुम्हें थोड़ी बनना है, ऊपर से आप भी बन जाओ। उनकी गर्लफ्रेंड अलग रोक टोक कर रही है, उनके मम्मी पापा अलग कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स अलग कर रहे हैं, तुम और बन जाओ रोक टोक करने वाले। ट्रू। क्यों बनना है भाई तुम्हें रोक टोक करने वाला? Bringing a good HR is very necessary.
हाँ, I was going to come to that point. मतलब people think that an HR role is useless. यूजलेस. हाँ, अरे भाई एचआर की इज्जत नहीं है मार्केट में, मैं ओपनली बोल रही HR का काम सिर्फ हायरिंग नहीं हूँ. होता. क्या मीम्स बनते हैं भाई, उन लोगों को लगता है एचआर सिर्फ रंगोली बनाते हैं. हमारे ऐसा नहीं है. We have an HR. Why do you think people think like that? You're a founder, you have hired an HR, the HR is now helping you build the team. We had the HR as soon as we touched 25 people. जब मुझे रियलाइज हो गया कि मैं अब उस 25 पॉइंट के बाद तो एचआर ने ही टीम बनाई है ना नवे. हाँ, HR ने टीम बनाई है. तो कल ही बात हो रही थी मेरी उससे. हाँ, कल शी वाज टेलिंग मी अबाउट सम मेड प्रॉब्लम शी हैड कि मेरी मेड ने ये बार छोड़ दिया, वो बार कर दिया, 3-4 बार उसकी मेड अलग अलग गड़बड़ कर चुकी है. एंड आई वाज लाइक ब्रो, आई डाउट योर हायरिंग स्किल्स नाउ एंड आई एम स्कैर्ड. एंड वी वर 5 people sitting in the that day. We were having like a light discussion चल रहा था, fun चल रहा था. There were 3 other people in the room. सनी, मैंने तो ये 3 लोग भी हायर करके दिए हैं. Do you doubt them also? कितना that is how she built the whole team along with one of the founders basically. टेक में शेफाली, अर्चित के साथ, प्रोडक्ट बाकी ऑपरेशन में शेफाली के साथ, they have played their important role there. मैनेजमेंट में मेरे साथ the top managerial people. But an HR is a very, कितना that person is like the Fevicol in the system. System, yeah. You need somebody to keep everything intact. Intact, yeah. उसका बहुत ऐसा काम होता है HR का जो तुम्हें लगेगा क्या ही काम है. प्रॉब्लम तो वो फिगर आउट करेगी, आके मेरे को सॉल्यूशन बताएगी, मैं सॉल्व करके दूंगा. वो बहुत जरूरी काम है. मतलब वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स इज एन चाइल्डहुड फ्रेंड. 15 साल से दोस्त है HR में. And he's one of the best friends I have and he's very good with people management. Yeah. तो HR plays a very very important role. The people don't talk about it. नहीं बात करते हैं. मुझे तो लगता है सिर्फ गाली देते हैं लोग एचआर को. सेल्स और टैक्स से ऊपर कुछ है ही नहीं लाइफ में. मेरा तो ये मानना है, इवन द रिसेप्शनिस्ट, यार द वे दे ग्रीट यू, हाउ दे मेक यू फील, इवन द ऑफिस बॉय. हमारा तो रिसेप्शनिस्ट और ऑफिस बॉय सेम है. हाँ. एक दिन वो आदमी नहीं आता ना, पूरा ऑफिस कॉफी के लिए तड़प जाता है. मंगाते रहो फिर बाहर से कॉफी. हाँ, फिर मंगाओ, करते रहो पैसे खर्च. राइट. और पानी और ये चाय मैगी ये सब. Every person holds an important role in the team, no matter how small, how big. True. Yeah. And I think, like you said, that till the time you let people be who they want to be and do what they want to do, the team will automatically operate in a manner naturally, बिना किसी force के, I feel. कि I wouldn't say they'll be aligned with your vision as a founder because I don't think कोई आपकी तरह उस चीज को देख सकता है. देखते हैं लोग, कुछ लोग देखते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं. देखो बहुत मोस्टली लोग पैसे के लिए और इज्जत के लिए, इन सब के लिए काम यार करते हैं. उस तरीके से, उस नजरिए से, सेम चीज से आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा लोग देख सकते हैं. 1-2 लोगों को शायद समझ में आएगा, वो आपका विजन है. नहीं समझ पाते लोग, नहीं समझ पाते हैं. वो तो है. मतलब यार जो समझ जाता है वो फाउंडर बन जाता है. सही बात है. हाँ, और अगर वो समझ सकते तो फिर वो फाउंडर होते. हाँ, मतलब दे आर फ्यूचर फाउंडर्स. जो आज समझ पा रहे हैं, दे आर फ्यूचर फाउंडर्स. व्हाई डज फ्लिपकार्ट हैज सो मेनी कंपनीज कमिंग आउट या they built a fantastic management. True. Who were all visionaries. Yeah. उड़ान का founder comes from Flipkart. और all these bigger founders, जितने भी नाम है ऑलमोस्ट सब सारे ex Flipkart founders ही थे. Flipkart माफिया. Because उन्होंने ऐसे लोग लिए, कल्चर बिल्ड किया, विजन समझाई लोगों को, सब एंटरप्रेन्योर बन गए यार. Right. This is a dream come true that you become a $1 billion company and the $10 billion companies are out of your company यार. मतलब that's the father of Indian startup ecosystem is the founder of Flipkart. Yeah, 100%. Sachin and Vinny Bansal. It's an undisputable fact. I became a founder because I saw their journey. I was one of the early Flipkart customers and I bro यार ये कर रहे हैं कुछ, जो ये करना है जिंदगी में, ऐसे फोड़ना है जिंदगी में. Yeah, सही बात है. चलो थोड़ी सी पैसे की बात करते हैं सनी, है ना. पैसा इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि पैसे के बिना कुछ चलता नहीं है ना. ये होगा, ये शूट भी पैसे के बिना नहीं हो सकता, है ना. आपकी कंपनी पैसे के बिना नहीं चल सकती, मेरी जिंदगी पैसे के बिना नहीं चल सकती, किसी की नहीं चल सकती. सो द क्वेश्चन, आई एम नॉट गोना आस्क यू. पैसा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन मेड इन्वेंशन एवर. आई एग्री भाई, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नीडेड, यू शुड वांट इट एंड इट्स ग्रेट. My question to you is, when money starts coming in at a certain level and at a certain amount from multiple places or a single place, irrespective of that, आपके हिसाब से how important is it to manage your money well? We discussed about it ना कि
अर्निंग मनी इज इजी, मैनेज इट. सो हाउ डू यू मैनेज इट प्रॉपरली? बट आ गया पैसा, किसी के पास 10 करोड़ है, उस 10 करोड़ के साथ करना क्या है वो नहीं पता है ना लोगों को. आ गया, गेट अ वेल्थ मैनेजर. गेट अ वेल्थ मैनेजर. गेट अ वेल्थ मैनेजर बहुत सिंपल है यार. हाँ. तुम्हें नहीं आता तो मत करो. ओके. तुम्हें कमाना आता है कमाओ. हाँ. जिसको बढ़ाना आता है उसको दे दो. हाँ. A lot of angel investors हाँ. invest through angel syndicates. राइट. Like we Founder Circle is a phenomenal angel investor network. It's invested in us also. Okay. You want to invest in startups, you don't know how to invest, do them. There's Faz, Syed Faz of GI Ventures. He's a great friend. Invested in Crib. And he runs a pura proper management setup. We did a podcast also, आकाश में और फैज ने किया था एक podcast, The Bharat Conversation. उसमें हाँ, भारत कॉन्वर्सेशन. Bharat Conversation is the first episode. हाँ. Faz is somebody, give your money to him and forget it. मतलब all my stock management, everything, He takes care of it. he takes care of it completely. And he has such a good network. Real estate भी है उनके पास, stocks भी है उनके पास, startups भी है उनके पास, सब है. तुम पैसा लेके पहुंच जाओ, वो grow कर देंगे. And he gives so good returns that you won't believe it. He's invested in a company and that company is right now at 80x. Wow. He was one of the early investors of Zip. अच्छा. उन्होंने Zip की जिस वैल्यूएशन में डाला था, Zip 80 Zip, हाँ. अब तो तो Faiz has that Midas touch. Wherever he puts in money, money. it goes, and I'm happy as he has put in income. Great. So आप ये बोल रहे हो अगर आपको नहीं आता है, just give your money and delegate it to somebody जो आपके लिए कर सकता है. Somebody who's trustworthy. Who's somebody who has trustworthy. seen, like for example, Faiz का I take guarantee. हाँ. भाई वो बंदा तुम्हारा पैसे लेके नहीं भागेगा. नहीं भागेगा. तुम्हारा कोई दोस्तों का जिसको मैनेज करना आता होगा, तुम्हें पता होगा, उसको दे दो यार. खुद सब करने की लालसा will destroy you. सही बात. मुझे नहीं आती ना ट्रेडिंग. हाँ. मुझे नहीं आता स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना. हाँ. अब मैं जितना मर्जी मान लूं मेरा आईक्यू अच्छा है, मेरा ये अच्छा है, नहीं होगा यार. मैंने फैज को स्टॉक्स में कभी स्टॉक्स में पैसा नहीं डालता था. मैंने फैज को सब पैसा दिया स्टॉक्स में और पैसा ग्रो होने लगा. हाँ. मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी था, मैं फैज को कमीशन क्यों दूं? मैं खुद करके देख लेता हूँ, मैं खुद डाल देता हूँ. हाँ. मैंने 4 स्टॉक्स ले लिए. हाँ. जैसे ही मैं बेचता हाँ. वो बढ़ जाता, जैसे मैं खरीदता वो डूब जाता. My God. 2-3 लाख रुपए का नुकसान किया 1 महीने में. उसके बाद मैंने कहा भाई बचाओ पैसा, तो ये भी तुम ही ले लो. हाँ. जो मेरे पास लिक्विड है वो तुम ले लो, मेरे को खुद नहीं ट्रेडिंग करनी. People are afraid of giving cut to somebody. Yeah. Give that cut, get the best job done. True. That's also a very good learning actually, because सबको यही थॉट आती है सबसे पहले मैं ही कर लेती हूँ, मैं कर लूंगा, इसको क्यों देना है. Yeah, be the best in your business. हाँ. अपना काम ठीक से कर, let others do their job ना. You can't be good at everything यार. वही बात आ गई ना, अगेन द टीम थिंग. अगर आप ही सब कर लेते या आप सब नहीं कर सकते हो ना एट क्रिब. कोई कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है सब. Even Sachin Bansal needed a team. 100%. Why did so many unicorns or startups come out of Flipkart? Because he hired the best Best, of the people yeah. to do their jobs. Yeah. Makes a lot of sense. I could keep going on with the conversation, Sunny, but before we obviously move towards one last question which I have, and then we'll go to the rapid fire round, which is a fun segment I keep towards the end. I want to understand from you, हमने obviously आपसे business, पैसे, आपके college days, your co-founders, thinking, the mindset, बहुत सारी चीजों के बारे में बात की. But I want to know from you that tell me a little bit about the fact कि जब हम success and failure की बात करते हैं, this is the most basic thing, but I ask this question to everybody on my podcast. Most cliche question. Everybody goes through a set of failures and successes, and then again a set of failures and successes, and that keeps going on. It's never a flat thing. It's a sine wave. Flat line means you die. Die. You're dead, right? Dead. My question to you is कि today, as we sit today and we're having this conversation in your lovely flat in Bangalore, what is the definition of success for you? Or the meaning or the understanding of success that you have built in these few years? What is it? Happiness. मतलब success, the metrics towards success should not be money. The metrics towards success should not be money. Okay. मतलब जो मेट्रिक्स सक्सेस मेजर जो आप measure कर रहे हो, जो सक्सेस मेजर करने की मेट्रिक्स है, इट शुड नॉट बी मनी, इट शुड नॉट बी फेम, इट शुड नॉट बी हाउ मेनी पीपल यू नो, इट शुड बी हाउ हैप्पी यू आर इन लाइफ.
If you have 500 crores in your bank account and you're crying, What's the use of it? Yeah. if the whole world knows you and you cannot go out and eat a golgappa and you are sad about it, you're not happy. Yeah. तो मेरा सक्सेसफुल होने का ये है क्या मैं उस दिन खुश हूँ. मैं अपनी सक्सेस कभी भी इस बात से मेजर नहीं करता कि क्रिप की वैल्यूएशन क्या है, क्रिप का रेवेन्यू क्या है, मेरी नेटवर्थ क्या है, मेरे पास कितना पैसा है. यार पैसा सबके पास है. मतलब मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास मेरे से 10 गुना पैसा है और अत्यधिक दुखी है. मतलब इतने दुखी है कि पागल ही हुए हैं. मैं ऐसा हूँ कि भाई 15 की जगह 12 घंटे काम कर लूंगा, 10 घंटे काम कर लूंगा, पर खुशी रहूंगा, घर आके खुशी रहूंगा. I've lived that life wherein it is all about money, it is all about fame, it is all about business, and it is not a happy life. You need to have a life apart from your business, and that should give you happiness. Yeah. Your life, your business, everything. So the easiest matrix to measure success is happiness. Happiness. How happy you are. How happy at you the are. end of the day. True. Okay. I think that is again one. So क्या interesting fact मैं आपको ये बताती हूँ. Close to about 35-40 episodes मैंने shoot किए हैं अभी तक. सब अलग आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का, because I think while it is a very philosophical question, it's personal, right? सबकी definition of success बहुत अलग होती है. तो जैसे जो आपने भी बताया, जो examples आपने दी, वो किसी और ने पहले नहीं बोला है. So I am always amused as a host because जितने भी episodes at least आज तक मैंने shoot किए, किसी ने same आंसर नहीं दिया है इस question का. सबका अलग Question same है. Right? सबका अलग है perspective. सबके लिए सक्सेस. एंड पता है मैं ये बोलूंगा, सक्सेस टाइम टू टाइम डिफर करती है. I agree. वो उस फेज पे भी डिपेंड करती है जहाँ आप हो जब मैं अभी. 20 साल का था ना, मेरे लिए पैसा हुआ सक्सेस. हाँ. आज हैप्पीनेस है. मे भी 5 साल कल कुछ और हो सकता 5 है. साल बाद फिर पैसा हो, हाँ. You don't know. या 10 साल बाद फिर फेम हो. मतलब वो तो इट चेंजेस. It changes. जैसे मुझे पहले लगता था हाउ हैविंग अ पीसफुल स्लीप इज सक्सेस, कि तुम यू कैन स्लीप लाइक रात को चैन से सो सकते हो. नहीं सो सकते तुम चैन से. तुम जितना सरदर्दी पाल लिए जिंदगी में, तुम चैन से नींद नहीं आएगी. और स्टार्टअप चलाते हो तो नहीं हो तो सकता. क्या इसका मतलब क्या मैं फेलियर हूँ? नहीं हूँ. नहीं वो भी है. ये भी कोई नहीं बोलता. नहीं बोलते लोग. क्या जब जाग रहा हूँ तब खुश हूँ क्या? खुश हूँ. जब अगर सो गया तो क्या खुश हूँ? तो शांति से सो गया, नहीं आया उल्टे सीधे सपने, तो ठीक है, चल रही है जिंदगी. पैसा तो यार जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है. पैसे से ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, ना कोई खुशी खरीद पाया है. जिसने खुशी खरीदने की कोशिश करी है पैसे से, उसे धोखा ही मिला है. सही बात है. और कभी होगी भी नहीं मुझे लगता है. ठीक है. With that, Sunny, thank you so much for obviously sharing everything about your life, about your journey, everything about building your shell, crib. बहुत मजा आया मुझे. And obviously, like I said, I could keep going on and asking you more questions. But with that, I will segue to the rapid fire round. इस वाले segment में I just want you to answer the question with the first thought or the first word or the first sentence that comes to your mind. First thought, you would have seen it. Yeah, I've seen that. You've been very candid. I'm very candid. मतलब Great. मेरे को तुम्हारे व्यूअर से छुपा के क्या हो जाएगा? मैंने पैसे थोड़ी लिए किसी से. वो तो मुझे पता है. वो तो आप करोगे ही. But ठीक है, I'm just setting the tone for that. ठीक है. चलो, let's start. The first question for you, Sunny, in the rapid fire round is money, fame, success, reputation. What is the most important right now for you? Reputation maybe. Reputation. Why? I care about my reputation. Or maybe if I say कि success is happiness, happiness is success, then probably success. Success. Because it is happiness then at the end of the day. Money and fame is not. Not. Fame was important till a time. हाँ. Then I gave up on it. मैंने कहा ये तो कोई फायदा नहीं है इसका. Okay. The second question for you is, do you believe in the concept of work-life balance? Just a yes or a no. It is basically days. मतलब It's days. Days मतलब there are days when you need a work-life balance, and then there are days when you have to work 18 hours a day. मतलब वो it can be very subjective to the condition of the business that day. Or maybe that month. But it is not something that can consistently obviously exist according to you. You cannot. You cannot run a startup with probably continuously doing it. मतलब ठीक है, मतलब मेरा मानना ये है कि थोड़ा कम कर लो, थोड़ा लेट हो जाएगा सक्सेसफुल. हाँ. बट वो ये कि कभी कभार जरूरत पड़ती है, एंड यू हैव टू kill the work life balance for it. And if you are doing it for the business and for happily, तो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है.
मतलब जबरदस्ती नहीं करना है। मेरा मानना है जबरदस्ती वर्क लाइफ बैलेंस नहीं खराब करना जस्ट बिकॉज तुम कर रहे हो। हाँ तुम 18 घंटे काम कर रहे हो और मुझे देख के फोम हो गया तो इसलिए नहीं करूंगा। हाँ। मेरे बिजनेस को जरूरत है 18 घंटा काम करने की, करूंगा। करोगे राइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू नो व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज दैट यू हैव मेड टिल डेट ऐसे तो ना करना प्लीज कुछ तो खरीदा होगा जमीन वमीन खरीदी होगी, जमीन वमीन खरीदी होगी ऐसे ये क्या होता है प्रॉपर्टी ली होगी, कुछ ऐसे होगा यार। मैं दिखाने वाली तो गाड़ी है 20-25 लाख के लिए, दिखाने वाली गाड़ी है अच्छा जो नहीं दिख रही है वो जमीन है वो जमीन है। सही है वो मेरे अलावा किसी को नहीं पता कहाँ है, क्यों है, किस लिए। Great. Okay, the next question I want to know if you have this opportunity ki you can host a round table dinner conversation with any three people, living or dead. Who would you want on that round table? शाहरुख खान, MS धोनी Oh ho. शाहरुख खान MS धोनी. एंड रतन टाटा। Wow. क्या कॉम्बिनेशन है इस टेबल पे मैं भी आना चाहूंगी 3 people who are very respectable, very in their own fields in yeah their own field, मतलब top what they have done in their yeah, fields, yeah. it is not just about money. yeah Like Ambani is more, it's about yeah it's about what they have achieved in life. And I think they have a happy sleep. I'm sure They have a happy life. yeah great choice इस dinner table पे मुझे भी invite आना चाहिए okay the last question for you in the rapid fire round Sunny is what do you think is that one skill that every individual should master irrespective of what they want to do in life sales बेचना सीख जाओ, सब सब जिंदगी सीख सॉर्ट हो जाओगे जाएगी। सॉर्ट हो जाएगी पर्सनल प्रोफेशनल सारी जिंदगी सॉर्ट हो जाएगी। पर कुछ लोगों को यार बात करना पसंद नहीं है कुछ लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं what about them मत करो फिर भाई, मत करो फिर then you lose out on you opportunities lose out on opportunities। तो वो तो वाली बात है ना कि तुमने मेरे से पूछा क्या चीज है जो सबसे जरूरी है। हाँ सबसे जरूरी सबसे जरूरी सेल्स है, उससे जरूरी कुछ नहीं है जिंदगी में। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी सेल्स आनी चाहिए हाँ, तुम्हें 50 लाख से 1 करोड़ के पैकेज पे जाना है, किसी कंपनी का CTO बनना है, आदमी को समझाना तो पड़ेगा ना कि क्यों तुम बेस्ट हो। करेक्ट तुम्हें रिश्ता करने जाना है, किसी लड़की के बाप को समझाना तो पड़ेगा ना क्यों तुम्हारे से लड़की शादी कराए। सही बात है टेक अ नोट एवरीबडी ग्रेट ठीक है परफेक्ट आई थिंक आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम सनी यू हैव बीन अ वंडरफुल गेस्ट टू हैव एंड आई थिंक मुझे कुछ चीजें ऑब्वियसली पता थी आपके बारे में बट देयर सो मच मोर दैट आई हैव गॉटन टू नो अबाउट योर जर्नी एंड एवरीथिंग दैट यू डू फॉर एवरीवन हु हैज स्टक अराउंड टिल दिस पॉइंट I hope that there's a lot of value learnings that you will take back from Sunny's journey. And I'd just like to also know from you, Sunny, before we obviously end the podcast, is there anything that you'd like to let the audience know? Yeah, you want to end the podcast on a note of, could be anything that you want to share with the audience? Any last? यार thank you so much for doing this. मतलब it नहीं, was my really pleasure. fun. We talked about things I've never talked about in life and on any podcast. Specifically my childhood, or maybe how my father's help has changed my journey. Yeah. Teda, you have been a wonderful host, Thank you. and I will tell all my friends also about it. They should do a podcast with you because okay, this was one of the great कॉन्वर्सेशन आई हैव हैड। मतलब बाकियों के साथ ऐसा लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ यार, इनको तो इन्होंने क्वेश्चंस रट लिए और ये वो कर रहे हैं, वो एनर्जी नहीं है, वो बात नहीं है। तो दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट यू। एंड Yeah. टू योर व्यूअर्स आई विल जस्ट से यार, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। बेसिकली स्टॉप क्रेविंग एंड स्टार्ट डूइंग। Yes. Great. The best plugin ever. Perfect. I think, no, thank you so much, Sunny, once again for doing this. And we will be linking, obviously, all of Sunny's socials in the description. Not that we need to, but they'll be there. You can definitely check it out. Crib के भी हम obviously डाल ही देंगे for everybody to check it out. 21 year old सनी होता है जिसने कंपनी बेची थी, जिसके सर पे वो बोलता गूगल करके देख लो। Google देख लेना सन्नी crib, सन्नी घर सनी घर काफी है, Google काफी है cool great but no I think it's been a wonderful episode. That's it for this episode. For everyone, don't forget to like, share and subscribe to the Dhairya Decodez channel. I will see you in the next episode. Thank you.